دلریز کو فون کر کے وہ فوراً واپس اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں حورے اپنے بیڈ پر پرسکون سے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لباس آرڈر کیا ہے، تقریباً 10 منٹ تک ڈیلیور ہو جائے گا۔ فی الحال کے لیے وہ حورے کو پہنا دو، کچھ دیر میں مولوی صاحب اور میرے کچھ دوست آئیں گے تو نکاح کریں گے۔ وہ حورے کے پاس بیٹھتے ہوئے بتانے لگا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو برا لگا میرا ویسے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ تکبیر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، مجھے بالکل برا نہیں لگا۔ تمہاری کوئی بات غلط نہیں ہے حورے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ آرام دہ محسوس نہیں کر سکتے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے رشتے کے بیچ میں کوئی اگر مگر نہ رہے۔ ہمارا نکاح ہوگا، آج ہی ہوگا، ابھی ہوگا، بس کچھ ہی دیر میں میرے دوست لوگ آ جائیں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک مضبوط تعلق میں بن جائیں گے۔ پھر کوئی ہمیں الگ نہیں کر پائے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ایک دوسرے کو چھین نہیں پائے گی۔ تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی اور میں تمہارا۔ وہ بے حد آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ حورے نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس نے جب سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اپنے آس پاس صرف اسی ایک شخص کو پایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ عدالتی شادی جیسے رشتے میں بن چکی تھی، یعنی کہ ان کی شادی ہو چکی تھی، صرف نکاح نہیں ہوا تھا۔ نکاح ہونا ضروری تھا، کم سے کم اس کے لیے تو ضروری تھا۔ بے شک اذن کے لیے شادی ہو چکی ہو، لیکن وہ نکاح کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ لیکن ہر چیز سمجھنے کے باوجود بھی اس کا ذہن بالکل خالی تھا، جس کے دماغ میں دور دور تک کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو کچھ دیکھ رہی تھی اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسے فی الحال یہی بات سمجھ میں آئی تھی کہ یہ شخص ہی اس کا شوہر ہے اور اس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے، اور یہ بات سمجھ لینے کے بعد اسے اور کچھ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کسی انجان شخص کے ساتھ نہیں تھی بلکہ اپنے محرم کے ساتھ تھی۔ بے شک وہ عدالتی شادی کو نہ مانتی ہو، لیکن ان دونوں میں ایک مضبوط رشتہ قائم تھا اور اب وہ نکاح کرنے جا رہا تھا، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ اور بھی اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا تھا، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پارسل آیا تھا جس میں اس کے لیے ایک سرخ رنگ کا خوبصورت سا جوڑا تھا جو کافی سادہ تھا۔ شاید اس نے جان بوجھ کر اتنا ہی سادہ سوٹ منگوایا تھا تاکہ اسے پہننے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ نرسوں نے تھوڑی دیر میں اسے کپڑے تبدیل کروا دیے تھے۔ ابھی اسے یوں بیٹھے ہوئے 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے جب باہر شور مچ گیا کہ لوگ آ چکے ہیں، یعنی کہ اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ وہ سکون سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ باہر صوفے پر ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اندر نہیں آیا تھا۔ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کبیر اندر آیا اور اس نے کہا تھا کہ حورے کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دو۔ نرس نے بھی اسے گھونگھٹ نکال کر اسے واپس بیڈ پر بٹھا دیا تھا تاکہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ایک بزرگ اندر داخل ہوئے تھے جس کے پیچھے 3-4 لوگ بھی تھے۔ کبیر خود بھی اس کے ساتھ ہی اندر آیا تھا۔ مولوی صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نکاح کی کارروائی شروع کرنے لگے۔ اس نے بہت غور سے مولوی صاحب کی بات سنتے ہوئے اذن شاہ کا نام سنا تھا اور پھر خاموشی سے ان کے پوچھے گئے ہر سوال پر قبول ہے کہہ دیا تھا۔ ایک طرف سے نکاح کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اب وہ کبیر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت احتیاط کی تھی اس کا نام لیتے ہوئے، کیونکہ شناختی کارڈ پر اذن کبیر شاہ لکھا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے اذن اور شاہ کے بیچ سے کبیر کو شاہ کے بار بار یاد دہانی کروانے پر کاٹ دیا تھا۔ اس وقت وہ صرف اذن شاہ ہی دہرا رہے تھے، جس پر اذن نے نکاح کی کارروائی مکمل کرتے ہوئے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ نکاح مکمل ہوا تو ہر طرف سے نکاح کی مبارکباد کا شور شروع ہو گیا تھا۔ باری باری ہر کوئی اسے گلے سے لگاتے ہوئے مبارکباد دے رہا تھا، جبکہ انہیں اپنے ساتھ باہر لے جاتے ہوئے وہ ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کروانے لگا۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی حورے نے سکون کا گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے سر سے گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ پوری طرح سے تھک چکی تھی، اس لیے نرس اس کی مدد کرنے لگی تھی واپس لیٹنے میں۔ جبکہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے تھوڑا سا سکون مل گیا تھا تو وہ باہر سے آنے والی آوازوں کو دلچسپی سے سننے لگی تھی، جو تھوڑی دیر تک تو آتی رہی، پھر کمرے کا دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے آواز آنا بند ہو گئی تھی، جس پر وہ منہ بنا کر آنکھیں موند گئی۔ پھر اس کی آنکھیں کب لگی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، محبت مبارک، عشق مبارک، میرے یار کو نکاح مبارک۔ دلریز کمرے سے باہر نکلتا بہت خوشی سے اس سے ملا تھا، جبکہ کبیر بھی اب بہت پرسکون اور خوش لگ رہا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے جسے چاہا تھا وہ اسے مل چکی تھی، اب اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ ارحان یہاں آتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ اس کا حورے کے ساتھ بہت مضبوط تعلق ہے، اور اس تعلق کے بنا پر وہ ہر تعلق کو رد کر سکتا تھا، اس تعلق کو جو ارحان اس کے ساتھ بنا رہا تھا۔ ارحان کا تعلق لفظی تھا، جبکہ اس کے ساتھ اب اس کا ایک مکمل رشتہ تھا۔ خیر مبارک، اب میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے تیار ہوں، بس جلدی سے اپنے نکاح کی دعوت دے۔ دلریز پرسکون انداز میں کبیر پرسکون انداز میں بولا تھا۔
अरे मुझे कहाँ से मिलेगी यार, सच कहूँ तो कोई दिल को भा ही नहीं रही। ये नहीं है मैंने कोशिश नहीं की है कोशिश, लेकिन फिर शायद इन रिश्तों के लिए बना ही नहीं हूँ। हाँ तो बस इस सियासत को पाल के रख और यहाँ दुलकर अब्बा भी बन जाएगा। ताया बनेगा तू बाप बनने से पहले, और इस दिन भंगड़े ढाल डाल कर नाचूंगा मैं जिस दिन मैं ताया बना। चल भाई, ना सही भतीजा तो कोई अहमियत देगा। वो मजे से बोला था, मतलब तो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा। कबीर को जैसे अफसोस हुआ था। अरे क्यों नहीं सोचूंगा, जरूर सोचूंगा। हो सकता है तेरी तरह अचानक ही किसी दिन कह दूं मौलवी लेकर पहुंच, मेरा निकाह होना है। बस एक दफा कोई पसंद तो आने दे, फिर तू देखना तेरे निकाह से ज्यादा इमरजेंसी में निकाह ना करवाया तो मेरा नाम भी दिल रेस कर देसी नहीं। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ था। बाकी लोग जा चुके थे, जबकि अब इसने भी जाना था, क्योंकि एक 1.5 घंटे में इसके महल नुमा बंगले में एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो कि इसके सियासी मामलात के लिए थी। वो इसे दरवाजे तक छोड़ता वापस अंदर आने लगा तो नर्सिस भी जाने को तैयार थी। इन लोगों को दरवाजे तक छोड़कर इसने दरवाजा अंदर से बंद किया था। अब कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। अब इसकी मोहब्बत का कोई इसे छीन नहीं सकता था। ये एहसास कितना राहत भरा था, ये सिर्फ वही जानता था। वो परसकून अंदाज में हुरे के कमरे की तरफ कदम बढ़ा चुका था। सुबह से शाम हो चुकी थी। पहले इसने अपने छोटे छोटे काम निपटाए थे। इसने खाना बनाया था। खाना बनाने के बाद इसे नींद आ गई तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी। जागी तो आहिस्ता आहिस्ता सूरज कुदीप होने के करीब था। इसने उठकर वक्त देखा तो शाम के 4:30 बज चुके थे। सर्दियां शुरू हुई तो सर्दियों में जल्दी शाम ढल जाती थी। अंदर की तरफ कदम भराते हुए इसने अब अबरक के बारे में सोचा था। अब तक तो इसको आ ही जाना चाहिए था। ना जाने इसके आने जाने का वक्त क्या था। सुबह 10 बजे के करीब वो घर से निकला था और अभी तक इसकी कोई खबर नहीं थी। इतने दिनों में इसे यह एहसास ना हुआ था कि वो कम से कम अबरक को एक फ़ोन लेकर देने को बोलती। इसके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए था जिससे वो इस पर रब्ता कर पाती। आज घर आए तो इनसे सबसे पहले फ़ोन लेने की फरमाइश करूंगी। कम से कम मुझे पता तो चल सके कि ये सारा दिन होते कहाँ हैं। मुझे इनके बारे में खबर तो मिलती रहेगी। इस तरह तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। फ़ोन लेकर देंगे तो सारा दिन तंग करूंगी। कमरे से निकलते हुए वो किचन में आती, आटा गूंदने की नीयत से आटा निकालने लगी थी, जबकि साथ ही साथ इसकी मनसूबाबंदी भी जारी थी। लेकिन फिर भी परेशानी थी कि वो अब तक आया क्यों नहीं था। अब तक तो इसको आ ही जाना चाहिए था। पिछली दफा तो टाइम से पहले वापस घर आ गए थे। हाँ, इस वक्त तक तो आ गए थे। इसने शादी का पहला दिन याद करते हुए कहा, फिर नफी में सर हिलाया था। नहीं, इतनी जल्दी नहीं आए थे। इस दिन भी बहुत देर से आए थे। अंधेरा होने वाला था, बल्कि खाने का भी वक्त हो चुका था मेरे ख्याल में, और 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तब तक मैं क्या करूं? आटा एक तरफ रखते हुए इसने सोचा था, टीवी देख लेती हूँ। किचन से बाहर निकलते हुए वो वापस अपने कमरे की तरफ आई थी। फिर अचानक ख्याल आया कि टीवी पर वक्त पर बात क्यों कर रही है। इस दिन इसने इसके माँ बाप के कमरे को साफ करते हुए वहाँ एक एल्बम देखी थी, जिसे बाद में देखने का फैसला करते हुए वो अपने कामों में लगी रही थी। अरे हाँ, याद आया। अब अबरक के हर वक्त रोमांटिक मूड ऑन होने की वजह से इस एल्बम का तो ख्याल ही नहीं आया। अभी देख लेती हूँ। ये सोचते हुए तेजी से कदम इसके कमरे की तरफ बढ़ाए थे और फिर जल्दी से अलमारी से वो एल्बम निकालने लगी। अपने कमरे में जाकर एल्बम देखने के बजाय वो वहीं भी बेड पर उल्टी पुल्टी मारकर बैठ गई थी। इसमें 3-4 एल्बम थी जिसमें काफ़ी सारी तस्वीरें थी। ये देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा परजोश थी। इसने एल्बम खोला। सबसे पहले से स्कूल यूनिफॉर्म में खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर नजर आई थी। तस्वीर देखते हुए इसने फौरन दीवार की तरफ सर घुमाकर देखा और फिर अबरक की माँ के चेहरे के साथ वो चेहरा मिलाने लगी। इसकी जोश की कोई इंतहा न रही थी। वो यकीनन अबरक की माँ की बचपन की तस्वीर थी। माशाल्लाह, अबरक की अम्मी इतनी खूबसूरत थी बचपन में, जवानी में और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। तभी तो अबरक कितने प्यारे हैं। ये बात अपने शोहर के सामने नहीं करनी। शोहर को कभी नहीं बताना चाहिए कि वो प्यारा दिखता है, वरना सर चढ़ जाते हैं शोहर। इसने साइमा खाला की बहू वाली बात दोहराई थी, फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसी। साइमा खाला की बहू के मुताबिक इनका शोहर बहुत प्यारा था, लेकिन वो इसकी बिल्कुल तारीफ नहीं करती थी, क्योंकि इसके मुताबिक इसका शोहर छत चढ़ सकता था और शोहर तो इसका भी बहुत प्यारा था, जिसकी वो भी तारीफ करने का बिल्कुल इरादा नहीं रखती थी। वो क्यों अपने शोहर को सर पर चढ़ा देती। वो खिलखिलाकर हंसते हुए दोबारा तस्वीरों पर झुक गई थी। जब अगली तस्वीर पर एक खूबसूरत सा नौजवान नजर आया, एक लम्हे के लिए इसे शक हुआ कि ये अबरक की तस्वीर है, बिना दाढ़ी मूंछ के। लेकिन नहीं, ये अबरक की तस्वीर नहीं थी। ये तस्वीर तो काफी पुरानी लग रही थी। इसने आहिस्ता से नजरें घुमाते हुए पीछे की तरफ देखा तो इस तस्वीर में अबरक के बाबा की शक्ल काफी हद तक अबरक से मिल रही थी। माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारे दिखते हैं। वो परजोश होते हुए आगे की तस्वीरें देखने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते इसे थोड़ी ही देर में पता चल चुका था कि इसके वालिदैन किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, क्योंकि आगे की तस्वीरों में कुछ बच्चे भी थे जिनको वो इनामात पकड़ा रहे थे। पीछे तारीखें भी लिखी हुई थी। वो आगे बढ़ते हुए अचानक एक तस्वीर पर रुक गई थी। मेहरुलनिसा। इसके लब आहिस्ता से बड़बड़ाए थे। कबीर कमरे में दाखिल हुआ तो वह सामने बेड पर लेटी हुई थी। इसने हैरानगी से इसे देखा था। वो इसे बिल्कुल ठीक छोड़कर गया था। ये अचानक से क्या हो गया था इसे। वो तेजी से इसके पास आते हुए इसके चेहरे के पास जमीन पर बैठा था। फिर नरमी से इसके गालों पर अपना हाथ रखा। हूरे, इसने बड़ी चाहत से पुकारा तो वह फौरन ही आंखें खोले इसे देखने लगी थी। शायद नहीं, यकीनन वो गहरी नींद में उतर चुकी थी।
क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, सो गई थी क्या? वो नरमी से पूछने लगा तो वो इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर हाँ में सर हिला गई थी। तुमने अभी तक दवाई नहीं खाई? और वो नर्सिस से ऐसे ही चली गई। हद होती है लापरवाही की, इनकी तो मैं सुबह को सवाल करूंगा। उठो, मैं तुम्हें दवा देता हूँ। वो नरमी से इसे उठाकर बैठने में मदद करते हुए बोला था। मुझे ये कपड़े चुभ रहे हैं, वो उठकर बैठते हुए इसे बताने लगी थी। वो कपड़े बिल्कुल सादा थे, मौसम की मुनासबत से खद्दर का बिल्कुल प्लेन सूट था, लेकिन शायद ओवरलॉक की सिलाई इसे चुभ रही थी, क्योंकि इसने नए कपड़े आते ही चेक किए थे और ओवरलॉक की सिलाई इसे भी काफ़ी सख्त महसूस हुई थी। इस वक्त तो हुडे ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि सूट भी पसंद कर लिया था। शायद इस वक्त वो लेटी ही नहीं थी, इसलिए इसे पता नहीं था कि सोते हुए वो कपड़े इसके लिए आरामदाह हैं या नहीं। तुम रुको, मैं कोई कपड़े निकाल कर आता हूँ, मुनासिब से जो तुम्हें ना चुभे, फिर आकर तुम्हें दवा देता हूँ। वो इसे बैठने में मदद करते हुए खुद कमरे से बाहर निकल गया था। थोड़ी देर में वापस आया तो इसके हाथ में ब्राउन कलर की कमीज शलवार थी। ये काफ़ी आरामदाह है, ढीले भी हैं, तो तुम्हें पहनने में मसला नहीं होगा। वो कपड़े इसके पास रखते हुए बोला तो एक लम्हे के लिए दिमाग में क्लिक हुआ था कि नर्स तो जा चुकी है, अब इसके कपड़े कौन तब्दील करवाएगा? मैं कैसे पहनूंगी ये कपड़े? नर्स तो चली गई है ना? वो परेशानी से इसे देखते हुए कहने लगी। तो कबीर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। मैं हूं ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब तो हम दोनों में एक ऐसा तल्लक कायम हो चुका है जिसके बिना पर मैं तुम्हारी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं। वो नरमी से इसके गाल पर अपनी 2 उंगलियां फेरते हुए इसके चेहरे पर सुर्ख लाली बिखेर गया था। वो तो ठीक, हम लाइट बंद कर देंगे। वो कुछ कहने की कोशिश करने लगी थी जब कबीर ने इसकी परेशानी का हल किया था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक ना तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और ना ही तुम पर किसी तरह का कोई हक जताऊँगा। तुम मेरी हो चुकी हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं फ़िलहाल आगे के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, हर तरह से इस तल्लक को निभाने के काबिल हो जाओ। इसके बाद सोचेंगे कि हमने इस तल्लक को किस तरह से मजबूत करना है। फ़िलहाल तुम्हारा ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम मेरी हो, मेरे पास हो, मेरी मलकियत में हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और यकीन करो, तुम्हारा हसन शाह सारी ज़िंदगी इस बात पर सजदा शुक्र करेगा कि तुम्हें इसकी मलकियत में दे दिया गया है। खैर, जल्दी से दवा खाओ, मेरे शुक्राने के नफल भी रहते हैं। वो मुस्कुराते हुए दवा इसके लब्बों के पास लेकर जाने लगा था, जबकि अपना मुंह खोलते हुए इसने पानी के गिलास को देखा था। फिर आहिस्ता से गिलास लब्बों से लगाते हुए इसने बिल्कुल छोटे छोटे घूंट लिए थे। दर्द तो नहीं हो रहा ना? इसने गिलास इसके लबों से हटाते हुए सवाल किया तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया था। जिस पर परसकून होता वह दोबारा से गिलास इसके लबों से लगाने लगा था। चलो अब जल्दी से लाइट बंद करते हैं, कपड़े तब्दील करो और लेट जाओ। तुम्हें नींद आ रही थी ना? मैं नहीं चाहता तुम्हारी नींद खराब हो। इसने इसके पीछे तकिया सेट करते हुए इसे आहिस्ता से बोला था। आप यहीं सो जाएं, अब तो निकाह में अपने बेड के अलावा और कहीं नींद नहीं आती। अगर तुम्हें मेरे साथ सोना है तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चल सकती हो। इसने आसान हाल दिया तो इसने फौरन हाँ में सर हिलाया था। इसने अंदाजे से वो समझ चुका था कि शायद वो नींद में डर जाती है या अकेले कमरे में वो खौफजदा रहती है। ठीक है, वो इसकी बात खत्म होने से पहले बोली तो कबीर ने अगले ही लम्हे एक हाथ में अपने कपड़े उठाए थे, दूसरे बाजू में इसे कैद करते हुए अपनी बाहों में बढ़ता इसे दूसरे कमरे की तरफ ले जाने लगा था। मैं चल सकती हूँ, नर्स ने कहा था ना? इसने इसे एक झटके में गुड़िया की तरह से अपनी बाहों में उठा लिया था, जिस पर वह शर्मिंदा होकर रह गई थी। इसीलिए वो इसे समझाते हुए बोली थी कि वो अब चल सकती है अपने पैरों पर। लेकिन कबीर ने तो जैसे इसकी बात को सुना ही नहीं था या फिर सुनकर नज़रअंदाज कर दिया था। मेरे होते हुए तुम्हें अपने पैरों को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। इसे लाकर अपने कमरे में बेड पर बिठाते हुए बोला तो इसके कमरे को देखकर वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गई थी। दूसरा कमरा जितना ज़्यादा आम सा था, ये कमरा इतना ही खास लगा था। इस कमरे में सब कुछ अलग और प्यारा सा था। इसे पहली ही नज़र में यह कमरा पसंद आ गया था। बहुत प्यारा कमरा है आपका, मेरा नहीं, हमारा। वो इसकी बात करते हुए इसके पास आकर बैठता, इसकी कमीज़ की जिप खोलने लगा, जिस पर खुदे का दिल तेजी से धड़का था। तुम्हें तब्दील करवा दूं पहले, फिर तुम आराम से सो जाना। वैसे देखते हुए बोला तो एक दफ़ा फिर से हुरे के चेहरे के रंग बदलने लगे थे। लाइट बंद कर दूं? इसने इसे देखते हुए सवाल किया तो हुरे ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया था, जबकि इसका बदन आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। अगर तुम खुद कर सकती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। हुरे को इस तरह से घबराते देखकर वो परेशानी से बोला था। वो हरगिज़ इसके लिए कोई इम्तहान पैदा नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ इसके लिए आसानी करना चाहता था। अगर हुरे को मसला था तो वो हरगिज़ इसके करीब जाने वाला नहीं था। इसके लिए हुरे की मर्ज़ी सबसे ज़्यादा अहमियत रखती थी। बाजू में दर्द है, नहीं हो पाएगा ना? वो परेशानी से बोली तो कबीर इसके बिल्कुल पास बैठ गया था। मैं हूँ, तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वह इसका चेहरा आहिस्ता से अपने हाथों में थामते हुए इसके माथे पर अपने लब रख गया था। इसका अंदाज नरमी लिए हुए था जब अचानक कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। इसने अंधेरे में अचानक कबीर को ढूंढते हुए इसकी कमीज़ पर अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। मैंने खुद लाइट बंद की है।
वो उसके कान में सरगोशी करता। आहिस्ता से इसके हाथ इसकी कमर के पीछे की तरफ ले जाते हुए इसकी कमीज की जिप को नीचे तक खोल दिया था। इसका ठंडा हाथ आहिस्ता से इसकी कमर पर सरका तो हुरे के जैसे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो नरमी से इसे थाम कर अपने करीब करता अपने सीने में छुपा गया था, जबकि आहिस्ता से इसके कंधे से कमीज सरकाते हुए इसे इंतहाई एहतियात और नरमी से कमीज को इससे अलग करते हुए फौरन ही इसकी गर्दन में अपनी कमीज का गला डाल दिया था। वो इतनी जल्दी जल्दी कर रहा था कि हुरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। जबकि अपने कॉलर के पीछे से बटन बंद होते महसूस करके इसने जोर से अपनी आंखें मीच ली थी। जब वो इसे अपने मजीद करीब करते हुए बाकी कपड़े भी बदलने लगा, इसे ना तो कहीं पर दर्द महसूस हो रहा था और ना ही कबीर के अंदाज में किसी भी तरह की सख्ती थी। हाँ, लेकिन वो शर्म से पानी पानी जरूर हो रही थी। कोई इसके इतने करीब आएगा, कोई इसे यूं छुएगा, ये तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। और कबीर का यूं इसके करीब आना इसे बुरी तरह से परेशान कर गया था। इसका पूरा बदन कांप रहा था। जबकि इसके कपड़े बदलते हुए कबीर ने फौरन ही इसके ऊपर कंबल डालते इसे अपने सीने में छुपाते हुए कमरे की लाइट ऑन कर दी थी। हो गया, बोला था ना अभी हो जाएगा, अब तुम सो जाओ, तुम्हारे इतनी देर तक जागे रहना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम रात को अच्छे बच्चों की तरह सोया करो और सारा दिन जागती रहा करो। रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। वो इसका ध्यान कपड़ों वाली बात से हटाते हुए इसे अपने सीने में छुपाए दूसरी बात करने लगा था, जबकि वो इसके सीने में हाँ में सर हिलाती इसके सीने में खुद को छुपा गई थी। कबीर की उंगलियों का लम्स अपने बालों में महसूस करती वो इस वक्त सिवाय इसके और किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। वो कबीर तक आई कैसे थी, कबीर को इससे मोहब्बत कैसे हुई थी, क्या वो कबीर से मोहब्बत करती थी, वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे, इसकी फैमिली में कौन था, वो कहाँ की रहने वाली थी, इसकी रिहाइश कहाँ थी, वो कहाँ तक पढ़ी लिखी थी, इसके हौब क्या थे। इसके जहन में हज़ारों सवाल थे, लेकिन इसे याद कुछ भी नहीं आ रहा था सिवाय इस शख्स के। और कुछ भी याद नहीं था इसे, कुछ भी नहीं। इसके माँ बाप कहाँ थे, इसके भाई बहन कहाँ थे, क्या इसका कोई था भी या नहीं, ये सारे सवाल वो इससे करना चाहती थी। और यकीनन इन सारे सवालों के जवाब असन के पास ही थे। सिर्फ वही इसे बता सकता था कि वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है। लेकिन ये सारी बातें तो इसने इसे तब बतानी थी ना, जब वो ठीक हो जाती। फिलहाल तो हसन सिर्फ इसकी तबीयत को लेकर परेशान रहता था। दिन में 3-3 डॉक्टर्स इसे चेक करने के लिए आते थे। नर्स हर वक्त इसके साथ रहती थी। एक खौफ इसके अंदर था कि वो बिना निकाह के शख्स के साथ रह रही है। तो कबीर ने आज वो खौफ भी ख़त्म कर दिया था। आज इसने इसे हमेशा के लिए अपना बना लिया था। आज इनका निकाह भी हो चुका था, लेकिन इसके सारे सवाल तो अब भी वहीं पर थे। वो इसके सीने में मुँह छुपाए आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों में चलने वाली उंगलियों से सुकून महसूस करती आंखें मौन गई थी। नींद ने कब इसे अपनी पनाहों में लिया था वो खुद भी नहीं जानती थी। बस यहाँ इसके सीने में एक सुकून था, लेकिन दूर कहीं ख्वाबों के इस पार एक डर भी था, एक साया सा जो इसे चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर देता था, जिसके खौफ से वो निकल नहीं पाती थी, जिसका नाम इसकी दुनिया लर्जा देता था। कबीर, इंस्पेक्टर कबीर। कौन था ये, कहाँ सुना था इसने ये नाम? वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन ये नाम इसके लिए खौफ का दूसरा नाम था। क्या मतलब तुम्हारा? फिर से कहीं घूमने फिरने जाने का इरादा है रानेन? मेरी बच्ची, हमें वापस आए अभी 3 दिन भी नहीं हुए और तुम फिर से कहीं जाने का इरादा रखती हो। दादू इसे देखते हुए कहने लगे थे, जबकि वो अपने लैपटॉप पर लगी साथ साथ इसके सवालों के जवाब दे रही थी। जब अचानक ही इसने कह दिया था कि मेरा इरादा कहीं घूमने फिरने जाने का है, मैं घर पर बोर हो रही हूँ। और ये बात दादू को झटके से कम ना लगी थी। एक तो वो कभी कहीं घूमने फिरने के लिए एक तो वो कभी कहीं से घूम फिर कर वापस आती तो 1-2 महीने तो इसकी थकावट ही खत्म नहीं होती थी। और इस दफ़ा वो खुद ही कह रही थी कि इसे फिर से कहीं घूमने फिरने जाना है। दादू, मैं बोर हो रही हूँ ना। पहले यूनिवर्सिटी का काम हुआ करता था, इसको करने के चक्कर में मैं कहीं जा ही नहीं पाती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मेरा दिल कर रहा है मैं कहीं घूमने फिरने जाऊँ, खूब सारा इंजॉय करूँ और आपको भी बहुत सारा इंजॉय करवाऊँ। वैसे मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट भी आने वाली है। अब की दफ़ा इसने आंख मटका कर चलने की भी वजह बताई थी, यानी वो अपनी यूट्यूब की पहली पेमेंट को खूब उड़ाना चाहती थी। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से इसका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ रेज कर देजी ही था, जिस पर लाखों के हिसाब से इसे व्यूज़ आ रहे थे और पेमेंट भी अच्छी खासी बन रही थी। इसका छोटा मासूम सा बच्चा नुमा चैनल जवान हो चुका था। इसके चैनल के सब्सक्राइब्स 30,000 के करीब जा चुके थे, इसकी जिसकी वजह से दिल रेज कर देजी ही था, क्योंकि इसके नाम पर इसने बहुत सारे व्यूज़ हासिल कर लिए थे और अब वो पेमेंट भी हासिल कर रही थी। यूट्यूब की तरफ से आने वाली पहली पेमेंट पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। ओहो, अब समझा कि पैसों की टेंशन क्यों नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची, मैं थक चुका हूँ, मैं 1-2 हफ्ते आराम करूंगा, इसके बाद ही तुम्हारे साथ कहीं चलूंगा। दादू ने साफ इनकार किया था। ओहो दादू, अब कितने बोरिंग है। वो मुंह बनाते हुए स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हुई, जहाँ इसे अपनी एक वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम का नोटिफिकेशन मिला था। कमीना कहीं का डर गया मुझसे। दादू, इसने मेरी वीडियो पर कॉपीराइट भेज दी है। वह परेशानी से कहने लगी थी। चैनल पर इतने दिनों से मेहनत करते हुए ये तो इसने सोचा भी नहीं था कि इसके चैनल पर इस तरह की स्ट्राइक भी आ सकती है।
लो जी, गई भैंस पानी में, अब क्या होगा? दादू भी काफी दिलचस्पी से इसकी स्क्रीन की तरफ देखने में लगे हुए थे। हो क्या क्या दादू? शिट, दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक। हो क्या क्या दादू? होगा क्या दादू? शिट, दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक भी लग गई है। कोई ने जवाब देते हुए दोबारा से स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हुई थी, जहां इसकी दूसरी वीडियो पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी थी। ओ शिट, दादू अगर तीसरी स्ट्राइक आ गई तो मेरा चैनल रिमूव हो जाएगा, वो परेशानी से इन्हें बताने लगी थी। इतनी मेहनत करके दिन रात जाग कर वो वीडियोस बना रही थी, अगर इसकी वीडियोस पर कुछ भी गलत हो जाता तो इसकी तो सारी मेहनत ही बर्बाद हो जाती। इतनी मेहनत तो इसने सहाफत की डिग्री हासिल करने के लिए नहीं की थी, जितनी वो इस यूट्यूब के चैनल पर कर रही थी। ऐसे में इसके चैनल पर यू डबल स्टार आना इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। कमीना कहीं का डरता है मुझसे, इसका असल चेहरा दुनिया के सामने ला रही हूँ ना, इसीलिए इसने स्ट्राइक भेजी है। अगर इसने मेरा चैनल रिमूव करवाया ना तो मैं इसे दुनिया से रिमूव करवा दूंगी। वो गुस्से से पागल हो रही थी, जबकि सामने ही से एक ईमेल शो हो रही थी कि अगर वो स्ट्राइक हटवाना चाहती है तो इसी ईमेल पर राब्ता करे। खैर वो जानती थी ये यूट्यूब की तरफ से एक सेटिंग थी। वो मकरूर करते से हर किसी से राब्ता नहीं करना चाहेगा। ये तो बहुत ये तो अच्छा खासा बड़ा मसला बन गया है रानी, इसका कोई हल तो होगा ना? दादू इसे देखते हुए कहने लगे तो इसने मासूमियत से नफी में सर हिलाया था। इसका बस एक ही रास्ता है, माफी मांगो, पैर पड़ जाओ इस मगरूर गर्देजी के, वरना इस चैनल को टाटा बाय बाय कर दो। खैर अभी तक तो 2 ही स्ट्राइक्स आई हैं, मैं यूट्यूब वालों को ना एक ईमेल भेजती हूँ। वो परेशानी से इनसे कहने लगी थी जब अचानक ही से अपनी स्क्रीन पर तीसरी ईमेल भी शो होने लगी, यानी कि इसका चैनल डिलीट होने की दहलीज पर था। या अल्लाह, अब इसकी परेशानी में वासिया इजाफा हुआ था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पिछले 1 महीने से वह दिन रात एक कर रही थी। यह हकीकत थी कि इसने इस चैनल पर अपनी बहुत सारी ताकत सर्व कर दी थी। ऐसे में अगर इसका चैनल डिलीट हो गया तो या अल्लाह, मुझे तो ठीक से कोई जानता भी नहीं, मुझे दोबारा से कौन सब्सक्राइब करेगा? वो भी तब जब पेमेंट बिल्कुल आने वाली थी। अगर चैनल डिलीट हो गया तो मेरी पेमेंट भी चली जाएगी, दादू मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो बहुत परेशान लग रही थी, जबकि दादू ने आहिस्ता से इसे थामकर अपने साथ लगाया लिया था। मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती मेरी बच्ची, तुमने मेहनत की है, कुछ गलत नहीं होगा। वो प्यार से समझाने लगे थे। 7 दिन का वक्त है दादू, अगर 7 दिन में मैंने इसे माफ़ी ना मांगी और इसने ये स्ट्राइक्स ना हटाई तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, और मैं नहीं माफ़ी मांगने वाली इस मगरूर गर्देजी से। वो जिद्दी अंदाज में बोली थी, जबकि इसकी मेहनत बर्बाद होने का सुनकर दादू को भी अफसोस था, लेकिन वो अपनी पोती की जिद से भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो चैनल डिलीट करवा कर सुकून तो ले लेती, लेकिन कभी भी इस गर्देजी से माफ़ी नहीं मांग सकती थी, इसलिए वो सिर्फ इसे हौसला ही दे सकते थे। ये क्या फजूल हरकत की है तुमने ज़ुल्करनैन? तुमने कहाँ पर ये शिकायतें भेजी हैं? मेरी ईमेल आईडी से। वो अपनी ईमेल आईडी चेक कर रहा था जब इसे अजीब तरह की मंजूरी की ईमेल शो हुई थी। जी सर, आपने कहा था ना इस लड़की को दफ़ा करो, इस लड़की पर फोकस नहीं करना, हमने अपने काम पर फोकस करना है। लेकिन सर मेरा फोकस इस लड़की के चैनल से हट ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसके चैनल पर तीनों स्ट्राइक्स भेजकर इसके चैनल को मुस्तकिल तौर पर डिलीट होने पर लगा दिया है। 7 दिन के अंदर इसका चैनल यूट्यूब से हट जाएगा और मेरा ध्यान भी इस चैनल से हट जाएगा। मेरा मतलब है मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी इस लड़की की वजह से, मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो इसे देखते हुए कहने लगा तो दिलरेज ने गुस्से से इसे घूरा था। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम्हारा दिमाग काम करता है? क्यों उल्टी सीधी हरकतों में पड़े रहते हो तुम? खत्म करो इसे अभी के अभी, स्ट्राइक्स हटाओ इसके चैनल पर से। बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, इतनी लगन से वो वीडियो बना रही है, मेरे खिलाफ ही सही, लेकिन तुम किसी की मेहनत को यूं बर्बाद कैसे कर सकते हो? ये काम यूं बैठे बिठाई नहीं होता, प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है। यूट्यूब की हर वीडियो के लिए सारी सारी रात जागना पड़ता है। मैंने देखा है लोगों को ये काम करते हुए, ये बहुत मुश्किल काम है। चलो जल्दी से हटाओ ये स्ट्राइक्स, और इस तरह की कोई भी गलती दोबारा मत करना। वो एक छोटी सी बच्ची है, अपनी पढ़ाई में कुछ भी नहीं कर पा रही, ऐसे में इसने एक छोटा सा काम शुरू किया है, इसमें भी तुम दीवार बन रहे हो। अभी के अभी हटाओ ये स्ट्राइक्स। वो गुस्से से घूरते हुए बोला तो जुल्करनैन ने हाँ में सर हिलाते हुए फौरन ही स्ट्राइक्स हटाने पर काम शुरू कर दिया था। सर वो छोटी बच्ची जरूर है, लेकिन वो आपके बारे में इतनी वाहियात और फजूल बातें करती है कि मुझे तो गुस्सा आ जाता है। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वही मेरे बारे में ऐसी बातें करती है और कोई नहीं करता? कितने न्यूज़ चैनल्स हैं जहां सुबह से लेकर शाम तक मेरी बुराई की जाती है। इन चैनल्स को तो बंद नहीं करते तुम? सर न्यूज़ चैनल और ऐसे चैनल्स में फ़र्क है, ये कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है कि लड़की मुंह में जो आती है वो बोलती जा रही है। आप एक दफ़ा इसकी बातें सुने, आपके अपने कानों से धुएं निकलने लगेंगे। अब की दफ़ा जुल्करनैन ने समझाते हुए कहा तो न जाने कि उसके अंदाज से दिलरेज थोड़ा हैरान हुआ था। अपने आप ही इसके दिल में दिलचस्पी झांक गई थी। ऐसा भी क्या कहती थी वो जिसे इसका सेक्रेटरी नहीं सुन पाता था? ये बात तो वाकई सुनने वाली थी। इसने अपनी स्क्रीन पर इसके चैनल के नाम को नोट किया था, लेकिन जुल्करनैन को महसूस नहीं होने दिया।
तकरीबन रात के 8 बज रहे थे और अब तक अब्र का कोई अता पता नहीं था। रोटियां बनाकर इसने हाथ पाट में रखी थी और फिर वापस कमरे में आ गई। बाहर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था और अब इसे डर भी लग रहा था। अब्र अब तक अपने घर वापस नहीं आया था। टेंशन से इसकी जान जा रही थी। अब तक तो वो आ जाता था, न जाने कहाँ रह गया है। बस यही सोच इसे बुरी तरह से परेशान कर रही थी। सारे कमरों के दरवाजे बंद करते हुए इसने अपने कमरे का भी दरवाजा बंद करते हुए वहां बेड पर कम्बल रखकर इसके आने का इंतजार शुरू कर दिया था। काफी देर यूं ही बैठे बैठे बोर होने से इसने टीवी ऑन कर लिया, लेकिन इसका दिल टीवी पर भी नहीं लग रहा था। जहन पर अब तक अब्रक सवार था। जाने कहाँ रह गया था वो हर थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोलकर बाहर झांकती, सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नजर नहीं आता। आम दिनों में इसे इस घर में डर नहीं लगता था, लेकिन अब अंधेरा हो चुका था और यहाँ कोई भी नहीं था। दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं था। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि घर को ताला लगाकर साथ वाली खाला के घर चली जाए। अकेले घर पर रहना इसे मुनासिब नहीं लग रहा था। अब्रक ने इसे मना भी किया था ऐसा करने से, इसीलिए वो जा भी नहीं सकती थी। अब तो इसे कमरे से निकलने से भी डर लग रहा था। ना जाने अब्रक कहाँ रह गया था। घड़ी ने 9 का हिंसा पार किया तो इसे नींद भी आने लगी थी और डर भी मजीद बढ़ गया था। अब्रक का अब तक ना आना इसे काफी ज्यादा परेशानी वाली बात थी। और फिर अब्रक ने तो इसे ये भी बता के रखा था कि वहां अड्डे में इसके बहुत ज्यादा दुश्मन भी हैं। या अल्लाह किसी दुश्मन ने कुछ कर तो नहीं दिया। वो परेशानी से बेड से उठते हुए वापस कमरे के दरवाजे तक आते हुए दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगी थी। बाहर कहीं से अचानक जोरदार कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो इसने दरवाजा बंद करते हुए वापस बेड पर आते हुए खुद पर कंबल तान लिया था। जब अचानक ही दिमाग में इस दिन वाली हालत की बातें चलने लगी। या अल्लाह, इन्हें तो यहाँ पर किसी चिड़ैल का गुमान भी हो रहा था। वो कांपते हुए हर तरफ देखने लगी थी। अब तो जैसे हर चीज में से चिन्ह चुड़ैलें नजर आने लगी थी। इसकी हालत खराब हो रही थी। खौफ से जैसे इसकी जान जा रही थी। दरवाजे को उसने अच्छे से अंदर से बंद कर रखा था, जबकि उसके बाकी डर खत्म हो चुके थे। एक ही डर बाकी रह गया था और वो डर था चुड़ैल का, किसी भूत का। जब अचानक ही कमरे की लाइट बंद हो गई और फिर बाकी घर की लाइट भी बंद हो गई थी, इसकी तो बेसाख्ता चीख बुलंद हुई थी और फिर अगले ही लम्हे वो दरवाजे तक भाग कर आती, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन बौखलाहट में से दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। कमरे की लाइट बंद कैसे हुई थी वो नहीं जानती थी, क्योंकि यूपीएस सिस्टम तो पूरे घर में था और लाइट तो कभी भी नहीं जाती थी। तो फिर अचानक से लाइट कैसे बंद हो गई थी? इसका तो बस एक ही मतलब निकलता है कि जरूर इसके आसपास कोई चुड़ैल या जिन है। वो तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। जब दरवाजा ना खुला तो खौफ हर तरफ से इस पर तारी होने लगा था। इस वक्त वो बिना छूते बिना चादर के दरवाजा खोलने की बौखलाहट में पागल हो रही थी। ना तो इसे सर्दी का एहसास हो रहा था और ना ही किसी और चीज का। खौफ से बस इसकी जान निकल रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसका पैर अचानक ही फिसला तो वह जमीन पर गिरती तेजी से अपनी टांगे समेटते हुए अपने घुटनों के साथ सर अपने घुटनों में दिए बुरी तरह से रोने लग गई थी। या अल्लाह, प्लीज अब अब्रक को भेज दो। मैं अंदर कभी भी इन्हें जबरदस्ती काम पर नहीं भेजूंगी। कभी भी इन्हें नहीं कहूंगी काम पर जाने के लिए। प्लीज आप इन्हें भेज दीजिए। वो बुरी तरह से सिसकते हुए रोना धोना शुरू कर चुकी थी। सिवाय रोने के से इस वक्त और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब अचानक ही इसे महसूस हुआ कि घर का दरवाजा बज रहा है, लेकिन दरवाजे की आवाज से कहीं ज्यादा इस पर डर हावी था। जब इसे अचानक ही घर के अंदर कोई कूदता हुआ महसूस हुआ, इसकी जान जैसे लबों में आ गई थी। कोई चोर डाकू। इसे आगे पीछे वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। इसका जहन सोचने समझने की कैफियत से बहुत दूर जा चुका था। इस वक्त इस पर अगर कुछ हावी था तो वो सिर्फ और सिर्फ इसका डर था। इसके कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई तो इसने और भी ज्यादा जोर से रोना शुरू कर दिया था। जब अचानक ही इसे महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर कोई जोर जोर से लात पैर मार रहा हो। वो समझ नहीं पा रही थी दरवाजे पर कोई चोर डाकू है या कोई जिन भूत। अगर इसे कुछ पता था तो बस सिर्फ इतना कि अब्रक घर पर नहीं था और वो यहाँ बिल्कुल अकेली थी। अपनी हवेली से भागकर कराची के सुनसान बस अड्डे तक आते हुए इसे इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना इसे इस वक्त महसूस हो रहा था। वो बुरी तरह घुटनों में सर दिए चीख चीख कर रो रही थी। जब अचानक ही दरवाजे का एक हिस्सा पूरी शिद्दत से टूटकर पीछे गिरा था और तेजी से अंदर दाखिल होते अब्रक ने इसे थाम कर अपने साथ लगा लिया था। तुम ठीक हो दिलम? क्या हुआ तुम्हें? इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बताओ मुझे, हुआ क्या है? क्यों रो रही हो? इसे बुरी तरह से रोते देखकर वो परेशानी से सवाल कर रहा था, जबकि इसके चेहरे को अपने हाथों में थमे वो बस इसके रोने की वजह जानना चाहता था। जब इसे अपने पास देखते वक्त अगले ही लम्हे इसके सीने में से लगती फूट फूट कर रोने लगी थी। इसके रोने में ऐसी शिद्दत आई थी जो पहले कभी नहीं थी। कहाँ चले गए थे आप? इस तरह से कोई जाता है अपनी बीवी को छोड़कर? सुबह से लेकर शाम तक आपका इंतजार करती रही, शाम को आप नहीं आए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, 2 घंटे में आप आ जाएंगे, लेकिन नहीं, रात लगा दी। 10 बज रहे हैं। ये कोई टाइम होता है घर वापस आने का? आपको पता नहीं है मैं यहाँ अकेली थी। यहाँ अकेले मुझे चोर डाकू डरा रहे थे, गली के कुत्ते डरा रहे थे, जिन भूत डरा रहे थे। अंधेरे से डर लगता है मुझे। आपको पता है मैं मरने वाली थी। आपको जरा एहसास नहीं है मेरा? सुबह से शाम तक काम पर थे। ऐसा कौन सा काम होता है जो सुबह से रात तक खत्म नहीं होता? अरे चिड़िया, कभी भी शाम तक अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। आपकी अपनी
आपकी अभी तक शाम नहीं हुई थी। वो बुरी तरह से इसकी चादर को पकड़कर साथ ही साथ इसकी कमीज को भी झंझोड़ी जा रही थी। कमीज के अंदर सीने पर मौजूद अबरक के बाल भी बुरी तरह से इसकी मुट्ठियों में खींच रहे थे, लेकिन अबरक को होश कहाँ था। वो तो बस इसकी बातें सुन रहा था। वहीं जमीन पर बैठते हुए इसने इसे थाम कर अपने साथ लपेट लिया था। बस 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 मेरी जान, वो इतने दिनों के बाद गया था ना, तो हिसाब किताब करना पड़ता है, इसीलिए देर हो गई। आज के बाद देर नहीं होगी, मेरा पक्का वादा है मेरी जान का टुकड़ा। गलती से देर हो गई थी, मुझे नहीं पता था मेरी चिड़िया इतना डर जाएगी। कौन से कुत्ते तुम्हें डरा रहे थे? कल से इस पूरे मोहल्ले में कोई कुत्ता नजर नहीं आएगा। चोर डाकू वाला मोहल्ला नहीं है, ये आबाद मोहल्ला है। यहाँ कोई चोर डाकू नहीं आ सकता और जिन चिड़ैल नहीं होते हमारे घर में। इस दिन हाला बकवास कर रही थी। यकीन मानो मेरी जान, और अंधेरे तो हर रोज होता है ना, अंधेरे से क्या डरना। वो प्यास से उसके चेहरे को चूमते हुए इसे समझा रहा था, जबकि वो कुछ भी समझने को तैयार ना थी। वो बुरी तरह से रोते हुए से लिपटे हुए थी, जैसे वो खुद से अलग करेगा तो सचमुच में कोई चीज आकर इसे खा ही जाएगी। इसकी बातों पर मुस्कुराते हुए वे इसे यूं ही अपने साथ लगाए पर सुकून करने की कोशिश कर रहा था। अबरक इसे अपने सीने में छुपाए वहीं जमीन पर बैठा हुआ था, जबकि बहुत सारा रोने और इससे लड़ने के बाद अब वो काफी परसकून से इसके सीने में खुद को छुपाए हुए थी। इसने आहिस्ता से उसे उठाकर अपनी टांगों पर बिठा लिया था। ठंडी जमीन पर बैठे बैठे वह मजीद सुकड़ती जा रही थी। इसका मासूम सा दिल इसके सीने में मसलसल थरथरा रहा था। वो अंदाजा लगा चुका था कि ये इस वक्त कितना ज़्यादा भारी कि ये वक्त इस पर कितना ज़्यादा भारी गुजरा है। नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो बार बार इसके चेहरे पर अपने लबों से महर लगाता इसे बता रहा था कि वो इसके साथ है। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, आप बहुत बुरे हैं, आप मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए थे। मेरी जान सदके, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। आज के बाद कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। बस काम ही ख़त्म। मेरी बिजी लाइफ के जो काम मुझे तुमसे दूर करते हैं, मैंने वो काम ही नहीं करना। वो शरारत से बोला तो इसने अबरक के सीने से सर उठाकर इसका चेहरा देखा था। बहाना चाहिए होता है बस काम ना करने का। काम तो आप करेंगे, लेकिन इतना लेट वापस नहीं आया करेंगे। अंधेरा होने से पहले आप मुझे घर पर चाहिए, बल्कि 6 बजने से 10 मिनट पहले आप घर पर मौजूद हो। वो दोबारा इसके सीने में छुपते हुए बोली तो अबरक ने किसी फरमादार इंसान की तरह हाँ में सर हिलाते हुए इसके माथे पर अपने लब रखे थे। ठीक है, जैसा मेरी जान कहेगी वैसा ही होगा। आज के बाद बिल्कुल लेट नहीं होना। वो इसे अपने सीने में छुपाते हुए आहिस्ता से जमीन से उठाता बेड पर ले आया था। इसे नरमी से बेड पर लेटाते हुए इसके साथ ही बैठ गया था। कैसा महसूस कर रही हो? ठीक लग रहा है ना? इसके हाथों को थामते हुए वो नरमी से इसकी हथेलियां चूमता सवाल करने लगा था, जबकि इसके ठंडे हाथों को अपने हाथों से गरमाइश पहुंचाने की कोशिश भी जारी थी। अच्छा लग रहा है, आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कब से रोटियां बनाकर रखी हुई हैं, अब तो ठंडी हो गई होंगी। वैसे तो मैंने हॉट पॉट में रखी थी। वो वापस उठने लगी तो अबरक मुस्कुरा दिया था। वो तेजी से बेड से उठते हुए सोफे के पास रखे टेबल पर आई थी और वहां से हाथ पर उठाकर अंदर रोटियां देखने लगी, जो अभी गर्म थी। शुक्र है गर्म है, वरना मुझे दोबारा बनानी पड़ती। मैं सालन गर्म करके लाती हूँ, आप मुँह हाथ धोकर आए और मुझे फ़ोन लेकर दें, ताकि कम से कम मैं आपसे रब्ता कर सकूँ। वो जूते पहनते हुए बोली, जबकि अबरक उठकर खड़ा होता वाशरूम की तरफ जाते हुए सिर्फ हाँ में सर हिला गया था। खाना खाकर चलते हैं तुम्हारा फ़ोन लेने के लिए। फ़ोन तो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, ये दिन दोबारा नहीं आना चाहिए। वो वॉशरूम में दाखिल होते हुए बोला था, जबकि इसकी बात सुनती वो किचन में आ गई थी। अब कोई डर नहीं था, वो सारे घर में मज़े से घूम रही थी, जैसे कभी डरी ही ना हो। खाना गर्म करते हुए वो लाकर कमरे के टेबल पर रख ही रही थी जब वो वॉशरूम से बिना कमीज़ पहने बाहर आ गया। आपको ना बस ये नंगापन करने का शौक होता है, वरना इतनी सर्दी में ना कोई अगर नहाता है और ना ही यूं नंगा पुंगा बाहर आ जाता है। इसके सुकून से आकर सोफे पर बैठने पर वो मुंह बनाते हुए बोली तो वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसका बाजू पकड़कर इसे अपने साथ बिठाता नवाला बनाकर इसके मुंह के करीब ले गया था। मुझे अपनी बीवी के सामने नंगा पुंगा घूमने का शौक है और मैं नहाता हूँ, क्योंकि सारा दिन मुझे हजार तरह के लोगों से हेलो हाई करनी पड़ती है, कभी गले भी मिलना पड़ता है। अब अपनी बीवी के पास बंदा ऐसी हालत में तो नहीं आ सकता ना। मुझे पसंद नहीं कि मैं अपनी बीवी के पास आऊँ तो इसे मेरे अलावा किसी और की खुशबू महसूस हो। मेरा बस चले तो मैं दुनिया की सारी खुशबुएं तुम पर बंद कर दूँ। वो दूसरा नवाला इसके मुंह में डालते हुए बोला तो वह हैरत से इसे देखती रह गई थी। क्या मतलब? आप क्या चाहते हैं कि मैं खुला क्या मतलब आप क्या चाहते हैं मैं खुली फिजा में सांस भी ना लूं? बस ये देखते हुए कहने लगी थी, मैंने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा बस चले तो अब किसी की सांसों पर मेरा बस चलता नहीं। ये अलग बात है कि तुम्हारी मैं रोक भी सकता हूँ। वो अचानक कहते हुए इसके चेहरे को थोड़ी सी थामता, अपने लब्बों को इसके लब्बों पर रखता, शिद्दत से भरपूर बेसा देते हुए सचमुच में इसकी सांसें रोकर पीछे हटा था।
जल्दी से खाना खाओ, फिर तुम्हारा फ़ोन लेने चलते हैं। वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए एक और नवाला बनाकर इसके मुँह में डालने लगा था, जबकि वो भी इस वक़्त ऐसी सूरत हाल से गुज़र रही थी कि इससे दूर होना ही नहीं चाहती थी। इसका एक हाथ अबरक के सीने पर था, जबकि दूसरा हाथ इसने पीछे से इसकी कमर के गिर्द लपेटा हुआ था। खाना खुद अबरक ही इसे खिला रहा था। इसने अब तक एक भी नवाला खुद से नहीं बनाया था। अबरक, आपको पता है, मैंने दूसरे रूम में अलमारी में एक एल्बम देखा। इस एल्बम में हाँ मेरी अम्मी अब्बू की तस्वीरें हैं, कुछ मेरी भी हैं बचपन की। हाँ, इसमें एक तस्वीर है, आपने कपड़े नहीं पहने हुए, टब में बैठे हुए हैं। अचानक याद करते हुए खिलखिलाकर हंसी। तो अबरक ने इसे घूरा था। लगता है तुमने इस तस्वीर को कुछ ज्यादा ही इंजॉय किया है, वो शरारती अंदाज में बोला तो वो फौरन ही सर झुकाकर नफी में सर हिला गई थी। कहाँ वो इसे तंग करने के लिए ये बात छेड़ चुकी थी और कहाँ अबरक ने इसे अपने ही अंदाज में ले लिया था। ओहो, अब क्या सर हिला रही हो? तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि मेरी इस तस्वीर को देखकर तुम्हें काफी अच्छा लगा है। मेरी नंगी पुंगी तस्वीर तुम्हें देखने में मजा आ रहा है और वैसे तुम्हें शर्म आती है। वो नवाला जबरदस्ती इसके मुंह में डालते हुए इसके गाल पर शिद्दत से बोसा देता इसके गाल को अपने दांतों की गिरफ्त में ले चुका था। निशान पड़ जाता है। वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए अपने गाल से हिलाने लगी थी, जबकि इसका हाथ हटाते हुए इसने नरमी से निशान पर अपने लब रखे थे। मेरा हो गया, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। वो इसके पास से उठने लगी, जो अब रखने से मजीद अपने करीब कर लिया था। चाय वापस आकर पियेंगे, पहले तुम्हारा फोन लेने चलते हैं। वो उठकर खड़ा होते हुए बेड पर आता अपनी कमीज उठाने लगा था। मैं अपनी मर्जी का फोन लूंगी, वो मजे से बोली थी, जबकि कमीज पहनते हुए वो इसका हाथ थाम गया था। जो हुक्म मेरी चिड़िया। वो इसे खींचकर अपने करीब करते हुए वहां से बाहर निकल गया था। इसने दिलम को इसकी मर्जी का फोन दिलवाते ही इसमें अपना नंबर सेव किया था। वो फोन पाकर बहुत खुश थी। इस वक्त वो अपने इलाके के एक अच्छे मसरूफ बाजार में थे। थक गई हो, कोई रिक्शा बुक करवाऊं? इसका हाथ थामते हुए उसे बाहर लेकर आने लगा, जिस पर इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। सिवाय आंखों के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कहने को इसने सिर्फ हबाया पहना हुआ था। बाया के ऊपर सिंपल सा स्कार्फ और इसके साथ ही इसने मास्क पहन रखा था। सिंपल सा नकाब था और इसका ये सिंपल सा पर्दा इसके शोहर को पसंद था। वो पहले वो पर्दा नहीं करती थी। पहले वो कहीं पर भी जाती तो बड़ी चादर लेती थी। इसके भाई ने भी कभी इस बात पर एतराज नहीं किया था। वो बाहर की हालत में निकलती है। हाँ, लेकिन इसे याद था कि वो 13 बरस की थी जब इसके भाई ने तोहफे में इसे चादर दी थी। यानी वो चाहता था कि बस चादर का इस्तेमाल करे। दिलरेज ने कभी इस पर हक नहीं जताया था, कभी इसे कोई हुक्म नहीं दिया था, लेकिन वो इसकी बातों को समझ जाती थी। इसके कहे बिना ही वो जान जाती थी कि इसका भाई क्या चाहता है और क्या नहीं। और अबरक के मामले में भी वही हो रहा था। अबरक को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि तुम पर्दा करो। वो इसके अंदाज से ही समझ गई थी कि वो ऐसा चाहता है और वो भी यही चाहती थी जो इसका शोहर चाहता है। कुलसुम बीबी ने बहुत छोटी सी उम्र में से ये बात समझाना शुरू कर दी थी कि जल्द ही इसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो इस पर हक जताएगा। वो इसका शोहर होगा। इसकी हर बात मानना इस पर फर्ज होगा। हो सकता है वो गुस्से का तेज हो सकता है वो फरमाइशें पूरी करने वाला ना हो, लेकिन इसका हर हुक्म इसके लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए, क्योंकि वो इसका शोहर होगा और इस इंसान का इस पर सबसे ज्यादा हक होगा। हाँ, कुलसुम बीबी ने इसे ज्यादा उम्मीदें नहीं दिलवाई थी, लेकिन अबरक इसे उम्मीदें दिलवा चुका था। वो इस पर गुस्सा भी होती थी, इसे नाराज भी होती थी, इसे फरमाइशें भी करती थी और इसे नखरे भी दिखाती थी और अबरक इसके नखरे उठा लेता था। बहुत खास था अबरक के साथ इसका रिश्ता, क्योंकि दिल के रिश्ते खास हुआ करते हैं। गोलगप्पे खाने हैं। रिक्शे से इनकार करने पर वो जो इसके बाजू को मजबूती से पकड़े इसके साथ चल रहा था। इसकी बात पे जैसे मुंह में पानी आ गया। इसने फौरन हाँ में सर हिलाया था, जबकि वो सीधा सामने वाले स्टॉल की तरफ चला गया था। ओ भाई, लगा एक गोलगप्पे की प्लेट। इसने अपने पीछे छुपाते हुए सामने खड़े आदमी को ऑर्डर दिया था। तीखा या मीठा? इसने पूछा तो इसने प्लेट कर इसे देखा था। फुल तीखा। वो परजोश अंदाज में बोली थी, इससे मुझे क्या फायदा होगा? इसने दुकानदार को जवाब देने के बजाय हल्की सी आवाज के साथ इसकी तरफ झुकते हुए सवाल किया था। कुछ नहीं। वो आंखें दिखाकर बोली थी, मीठा करो भाई, मीठा। वो पलटकर दोबारा ठेले वाले से कहने लगा तो इसे अपने हाथ पर चुटकियों के निशान महसूस होने लगे थे। पहले मेरा फायदा होगा, फिर मैं किसी दूसरे का फायदा करवाऊंगा। अच्छा ठीक है ना, जो आप कहेंगे मंजूर है, मगर फुल तीखा चाहिए मुझे। वो हार मानते हुए बोली थी, मेरी डरी सहमी सी चिड़िया, बर्दाश्त कर लो कि मुझे इसका अंदाज पे बेबाकी लिए हुए था, जबकि वो आहिस्ता से मुक्का इसके कंधे पर मार चुकी थी। फिर दो ऑर्डर के ना दो। इसकी मुस्कुराहट बरकरार थी, जबकि वो इसकी कमीज को अपनी उंगली में लपेटते हुए हाँ में सर हिला गई थी। मैं तुम्हें ऐसे ही कमजोर जान समझ रहा था। तुम्हें चैलेंजेस लेना बड़ा पसंद है। भाई तीखा करो, फुल तीखा। मेरी बेगम को तीखापन पसंद है। वो ऑर्डर देते हुए इसके गिर्द अपना हिसार बनाते हुए एक साइड पर खड़ा हो गया था। वो पूरी तरह इसके आगे खड़ा था, कोई भी इसे देख ना सके। आप बहुत बेशर्म है। मैं गोलगप्पे खाकर घर जाकर सो जाऊंगी, चाय भी नहीं बनाकर दूंगी। छोटा बच्चा आकर प्लेट इसके हवाले कर गया तो वो मार्क्स नीचे करते हुए इसे धमकी देने लगी थी। सर्दियों की चाय सर्दी दूर करने के लिए पी जाती है, लेकिन मेरे पास अपनी सर्दी दूर करने का बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, तो चाय मैंने पीनी भी नहीं है। वो बड़ा सा गोलगप्पा उठाकर अपने मुंह में डाल रही थी जब वो पुरसुकून अंदाज में बोला, मैं सो जाऊंगी, कान खोलकर सुन लीजिए। इसने अब की दफा धमकी दी थी।
तुम्हें सच में लगता है कि तुम सो जाओगे और मैं कुछ नहीं करूंगा? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगा था। आप मेरे अच्छे वाले हस्बैंड है ना? इसने फौरन अपने मोतियों जैसे दांतों की नुमाइश की थी। अच्छा, बहुत अच्छा मेरी चिड़िया, मैं तो इस वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ, लेकिन इस मामले में नहीं। अच्छा, वादा करें आप मुझे रोज रोज गोलगप्पे खिलाने के लिए लेकर आया करेंगे। वो इसकी बातों का मौजू बदलने लगी थी। इरादा इसे वादा लेने का भी था। नहीं, ये इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है जो हर रोज़ तुम्हें खिलाई जाए। हाँ, लेकिन घुमाने के लिए रोज़ लेकर चल सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे घुमाने के लिए लेकर जाइएगा। इन गोलगप्पों की विश मैं खुद पूरी कर लूंगी। वो एक और गोलगप्पा अपने मुंह में डालते हुए बड़े यकीन से बोली, तो इसके अंदाज पर वो सिर्फ मुस्कुराया था। हाँ, वो इसे कोई भी बात मनवा सकती थी। इस बात का यकीन तो खुद अब्र को भी हो चुका था। मैं तुम्हारी जिद पूरी करूंगा, तो तुम्हें भी बदले में कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। वह आहिस्ता से इसके होंठों के निचले हिस्से पर अपना अंगूठा फेरते हुए गोलगप्पे के असरात साफ करने लगा था। मैं एक बहुत अच्छी और फर्मादार बीवी हूँ। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। इसकी बात का मतलब समझकर वो अपने चेहरे पर आने वाली सुर्खी को छुपाती सर झुका गई थी, जबकि इसकी बात का मतलब समझकर अब्र का बेबाक का बुलंद हुआ था। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि मेरी बीवी है तो सच में बहुत फरमाबरदार। वो नरमी से इसके गाल खींचते हुए फिर से अपनी उंगलियों को चूम गया था, जबकि इसके अंदाज पर वो मजीद सर झुका गई थी। वैसे बड़ी भूखी हो, तुमने मुझे ऑफर नहीं की। आखिरी गोलगप्पा भी इसके मुंह में जा रहा था जब अचानक अब्रक ने कहा। इससे पहले कि अब्रक इस रिएक्शन को समझ पाता, वो गोलगप्पा मुंह में डाल चुकी थी। खत्म हो गए। इसने अपने मुंह में आखिरी गोलगप्पा डालते हुए बड़ी मुश्किल से अपने होंठों को हरकत देते हुए ये कहा था, जबकि इसके अंदाज पर अब्र कहकर लगाकर हंसता इसके हाथ से प्लेट लेकर वापस ठेले पर रख चुका था। हम और भी ले सकते हैं। वह अब अब्र की तरफ पलटी तो वह फौरन बोली थी, और मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपने लिए और ले लूँ? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे और लेकर दे, मैं बीच में से एक आपको दे दूंगी। मेरा मतलब है मैं आपसे पूछ लूंगी। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल फिर से आएंगे। वो इसका हाथ थामते हुए इसे लेकर जाने लगा तो इसने ललचाई नजरों से ठेले की तरफ देखा था, लेकिन अब्रक ने फौरन ही हाथ इसके कंधे पर फैलाते हुए कदम आगे बढ़ा दिए थे। यार, अब्रक के हाथ में यह खजाना कैसे लग गया? पता करो कहाँ से लेकर आया है इस लड़की को। थोड़े फासले पर 3-4 आदमी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो अब्रक को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। हाँ, लेकिन लड़की की पहचान नहीं थी। यार, पता नहीं कहाँ से लेकर आया है। कह रहा था किसकी सवारी है। दोनों में मोहब्बत हो गई। लड़की का कोई सौतेला भाई था सिर्फ, जिसने निकाह परवा दिया। मुझे तो झूठी कहानी लगती है। वो आपस में ही बहस करने लगे थे, पर मुझे तो लगता है कहीं से खरीद कर लाया है। यार, ऐसा माल कहाँ से मिलता है? ये तो अब्रक ही बता सकता है। दिखने में तो बहुत नाजुक सीधी सादी सी लगती है। हाँ, अब्रक से पूछ लेते हैं, वरना ये लड़की बता देगी। वो अपनी बात खत्म करता गजालत बड़ा कहकर लगाने लगा। तो बाकी दोनों ने भी इसका खूब साथ दिया था। और जानता है ना, अब्रक को हड्डियां सेक देगा। इसके साथ थोड़े फासले पर पीछे की तरफ बैठे एक और आदमी ने अब्रक की दहशत दिखाई थी। ड्राइवर है बेचारा, दिन में होगा काम पर, रात को वापस आएगा, हम दिन में ही पूछ लेंगे। वो कहकर लगाते हुए दूसरे के हाथ पर हाथ मार गया था, जबकि वो आदमी नफी में सर हिलाते हुए इस जगह से उठ गया था, क्योंकि इसका हरगिज़ इरादा न था अब्रक के हाथों से पिटने का। कुछ पता चला हुरे के बारे में। अरहान के यूं आने से पहले दिलकुर को यही लगा था कि यकीनन वो हुरे के बारे में ही पता करने गया है। नहीं यार, मैं हॉस्पिटल गया था, कुछ भी पता नहीं चला। अरे ये कबीर कहाँ है? वो अंदर दाखिल होते हुए पूछने लगा था। छुट्टी पर। दुलकर ने जैसे ही बताया, अरहान के कदम वहीं रुक गए थे। इसने हैरत से दुलकर को देखा था। वो छुट्टी पर कैसे हो सकता है? आज तो काम था ना यहाँ पर। ना इसे इस केस की परवाह रही है और ना ही हुरे की। मुझे कल कह रहा था कि वो हुरे के बारे में पता करेगा। पता नहीं इसने किस इंस्पेक्टर को लगा के रखा हुआ है। तू कहाँ है? वो हुरे की कोई खबर क्यों नहीं आई है? इस केस पर भी वो काम नहीं कर रहा। आज चल क्या रहा है? वो आज भी छुट्टी पर कैसे हो सकता है? कल भी वो छुट्टी पर था। वो हैरत से सवाल करने लगा, जिस पर दुलकर ने सिर्फ कंधे उचकाए थे। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यार। कल तक तो ये केस ही इसके लिए सबसे कुछ था, अब छुट्टियां कर रहा है। हो सकता है इसके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। इसने अंदाजे से कहा था। इसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं बनी दुलकर के वो काम छोड़ते। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसने हुरे को मार डाला है। इसने हुरे को मारकर इसकी लाश को गायब कर दिया है। तुम ये मानो या ना मानो, इसलिए वो दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा हुरे को ढूंढने में। पुलिस वाला है, बात को दबा देगा, यहीं पर सब कुछ दफन हो जाएगा। इस ऐसा ऐसा इसे लगता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं हुरे को तलाश करूंगा और किसी भी कीमत पर करूंगा। मैं इसे हरगिज इस मामले से निकलने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ इसके घर। वह गुस्से से कहते हुए वहां से निकला था, जबकि दुलकर भी परेशानी से इसके पीछे ही आया था। सुबह नमाज पढ़ने के बाद वो इसकी जागने का इंतजार करता रहा था। तकरीबन 8-8:30 बजे के करीब इसकी आंख खुली तो इसने उठने से पहले ही दलिया बना लिया था। थोड़ी देर के बाद नसीज आ गई थी, जो हुरे को अपने साथ मसरूफ कर चुकी थी। इसका काम पर जाने का इरादा नहीं था, सो वो अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर काम करने लगा था। कल रात इसने मोबाइल का ऑर्डर दे दिया था, शायद आज आ जाना था। इसने अभी तक अपने इस मिशन पर काम शुरू नहीं किया था, हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। इसने सोच लिया था कि बस मिशन पर इसी हफ्ते से काम शुरू कर देगा। पहले ये मिशन इसके लिए जितना अहम था, हुरे की हालत देखते हुए वो हर चीज़ को पीछे छोड़ चुका था। हुरे से ज़्यादा अहम इसके लिए और कुछ भी नहीं था। वो अपने सामने लैपटॉप खोले अपने काम में मसरूफ था, जब दरवाजे की बेल सुनाई दी। इस वक्त कौन आ सकता है? वो परेशान होते हुए
वो परेशान होते हुए लैपटॉप एक तरफ रखता उठकर कमरे से बाहर निकल गया था। नर्स दूसरे कमरे में इस वक्त हुरे के साथ मौजूद थी। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोलते हुए बाहर खड़े अरहान और दुलकर को देखा था। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने परेशान होते हुए फौरन ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए फौरन दरवाजा बंद कर दिया था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब की दफा इसने सख्त लहजे में पूछा था। इनका रोज रोज यहाँ आना ठीक नहीं था। नीचे से ऊपर तक आ चुके थे, ऊपर से अंदर तक आने में कितना वक्त लगना था। और इन्हें पता चल जाता कि हुरे यहाँ है तो भी वो क्या उखाड़ सकता था। अब हुरे इसके निकाह में थी, वो हुरे को हर किसी यहाँ से जाने नहीं दे सकता था। हाँ, लेकिन अगर वो हुरे को कुछ बता देता तो इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिलहाल वो हुरे की सेहत पर किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनने में आया है कि तबीयत खराब है तुम्हारी, इसलिए आराम कर रहे हो, तो सोचा हाल चाल पूछ कर आ जाए। बड़ी छुट्टियां हो रही हैं। पहले तो हसन कबीर को पूरा साल छुट्टी न करने पर वार्ड मिलता था, और अब हसन कबीर को बहानों से फुर्सत नहीं है। कहाँ से बीमार हो तुम? जरा मुझे तफसील से बताना। अरहानी से घूरते हुए बोला, जबकि इसके हिसाब किताब वाली आदतों से कबीर हमेशा से चिढ़ता था। सच में तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए छुट्टी पर था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम लोग बार बार मेरे घर आ जाओ। मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। इसने एक दरवाजे की तरफ देखा था जो बाहर से बंद था। इसने खुद ही बता दिया था कि अंदर मेहमान है, वरना इसका ये छपा हुआ अंदाज दुलकर को भी परेशान कर गया था, क्योंकि इससे पहले बस घर पर आया था, रात में रुका हुआ था, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इस घर में जो कबीर इनसे छुपाता, इन मेहमानों से फारग होकर जल्दी आना, अगर तुम्हें याद हो तो वक्त कम है तुम्हारे पास हुरे को ढूंढने का। वो इसे घूरते हुए बोला तो कबीर ने आंखें घुमाई थी। मैंने ठेका नहीं लेकर रखा तुम्हारी बहन का। अगर वो कहीं पर गायब हो गई है तो जाकर तुम इसको ढूंढो। अगर मेरे मेंशन के लिए हाथ होता तो मैं जरूर ढूंढता। तुम्हारे लिए गुड न्यूज यही है कि मैंने इसे कत्ल करके कहीं पर भी नहीं फेंका। वो जहाँ गई है अपनी मर्जी से गई है। अगर हो सके तो तलाश करो, मिल गई तो मुबारक। वो कहते हुए गुस्से से दरवाजा बंद कर गया था। ये अरहान तो जरूरत से ज्यादा ही इसके सर पर चढ़ता जा रहा था। वो जितना इसे जान छुड़ा रहा था, वो इतना ही इसका दिमाग खराब कर रहा था। दरवाजा बंद करके अंदर जाने पर अरहान ने गुस्से से दरवाजे को तोड़ना चाहा था, जब दुलकर ने इसे पकड़कर पीछे किया। मैं इसकी जान निकाल दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर हुरे को कुछ भी हुआ ना, तो इसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो सबसे पहले मैं इसका कत्ल करूंगा। अरहान प्लीज रिलैक्स हो जाओ। वो कुछ नहीं जानता इसके बारे में। अगर कुछ जानता तो कभी इस तरह से रिएक्ट हरगिज नहीं करता। हम मिलकर ढूंढ लेंगे हुरे को, प्लीज तुम परेशान मत हो। दुलकर इसे समझाते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा था, जबकि वो गुस्से से दरवाजे को घूरता इसके साथ ही सीढ़ी से उतर गया था। कबीर ने अंदर आते हुए एक नजर हुरे के कमरे पर रुककर अंदर की तरफ देखा था, जहां नास इसे कुछ बता रही थी, जबकि वो इसकी बातों पर हंसते हुए इसकी बातें सुन रही थी। रिलैक्स होते हुए कबीर अपने कमरे की तरफ आता अपने लैंडलाइन की तरफ आया था। हाँ बोल जिगर। दूसरी तरफ से फौरन ही फोन उठा लिया गया था। एक आदमी पीछे लगा हुआ है, इत्तेफाक से इसे मेरा साला होने का शर्फ हासिल है। जरूरत से ज्यादा ही दिमाग खराब कर रखा है इसने। 24 घंटे सर पर सवार रहता है, सुकून का सांस नहीं लेने दे रहा। वह की सांस में बोलता चला गया था, जबकि दरवेश ने गहरी सांस लेते हुए कुर्सी की बुश से टेक लगाई थी। मेरी सिक्योरिटी में लोग कम है कबीर, मुझे एक अच्छा और काबिल एतबार सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। इंस्पेक्टर अरहान चलेगा मुझे। इसे दूसरी तरफ से दरवेश की आवाज सुनाई दी थी, तो इसके लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। जानी तेरी हाथों में अपने भाई को भी सिक्योरिटी गार्ड रख लूंगा, तू फिक्र ना कर। करता हूँ तेरे साले का बंदोबस्त। वह कहते हुए फोन बंद कर गया था, जबकि कबीर रिलैक्स सा किचन की तरफ आया था, क्योंकि इसका इरादा हुरे के लिए कोई नरम सी गज़ा बनाने का था। पिछली रात अबरक ने इसे खूब तंग किया था। वापस आने के बाद इसके जज्बात पूरी तरह से बेदार हो चुके थे। वो सुबह जागते ही अपने कामों में मसरूफ हो चुकी थी। इसने अबरक को जगाया तो उसने कहा था कि इसकी टाइमिंग तकरीबन 10:30 बजे की है, तो वो 10 बजे के आसपास घर से निकलेगा, तब तक इसे सोने दिया जाए। इसीलिए इसने भी अबरक को बिल्कुल तंग नहीं किया था। इसे सारा दिन काम करना था। अच्छा ही था कि वो अपनी नींद पूरी करता, क्योंकि रात तो वो सोया ही नहीं था और न ही इसने इसे सोने दिया था। वो तो दिन में कभी भी अपनी नींद पूरी कर सकती थी, लेकिन अबरक के लिए ये मुश्किल हो सकता था। अपना काम खत्म करते हुए वो अबरक के मामा और बाबा के कमरे में आई, तो सामने टेबल पर इसे वो एल्बम नजर आया था, जिसके साथ एक लॉकेट भी कल अलमारी से निकला था। माहिशा के नाम का लॉकेट देखती वो फौरन ही इसके पास आ गई थी। कल वो अबरक को इस लॉकेट के बारे में ही बताना चाहती थी, जब इसने बातों का रुख बदल दिया। ये लॉकेट काफी पुराना था, लेकिन इसका डिजाइन बहुत खूबसूरत था। शायद माहिशा अबरक के बाबा का नाम था। वो गहरी नजरों से लॉकेट को देख रही थी। इसने सोच लिया था कि जब अबरक जागेगा तब वो इसके बारे में जरूर पूछेगी, और ये भी जरूर पूछेगी कि इसके मामा पापा की तस्वीर के साथ मेहरुन्निसा की तस्वीर कैसे थी। ये सवाल इसे बहुत परेशान कर रहा था, जिसका जवाब सिर्फ अबरक ही दे सकता था। इसीलिए इसे अबरक के जागने का इंतजार था। सुनने में आया है कि तुम्हारी वाली यूनिवर्सिटी में अदृश्या की बेटी ने भी एडमिशन ले लिया है। जब रानशाह शिकार से वापस आया तो उसके बाबा पहले ही तैयार बैठे हुए थे। शायद अब वो शिकार पर जाने का इरादा रखते थे। अगर जब रानशाह को पहले अंदाजा होता तो वो दोनों साथ जाते, क्योंकि इसके बाबा के साथ इसका एक्सपीरियंस हमेशा ही बहुत अच्छा रहता था। बाबा जान,
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اندازہ لگا سکوں کہ گاؤں سے کون یونیورسٹی جا رہا ہے. بہت مصروفی چل رہی ہیں, فائنلز ہونے والے ہیں. وہ وہیں صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تھا, سیاسی دشمنوں سے ہٹ کر دیکھا جائے تو زمینی دشمنیوں کا بھی معاملہ ہے جبران شاہ, اور تم ہم سے اس معاملے میں نہ تو کچھ چھپا سکتے ہو, نہ ہی تمہاری یہ کوشش ہم سے کامیاب ہونے دیں گے. ہمارے لوگوں نے خود تمہیں 2-3 دفعہ مہرالنساء کے آس پاس دیکھا ہے. بابا کا لہجہ سخت تھا. اچھا, مہرالنساء ادریس شاہ کی بیٹی ہے؟ قسم لے لے بابا, جس بارے میں علم نہیں تھا. اب میں خود ہی دوری بنا کر رکھوں گا. وہ سیدھا ہوتے ہوئے کہنے لگا تھا, ہمارے سامنے معصوم مت بنو جبران شاہ, ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. جتنا ہو سکے اس لڑکی سے دور رہو. تمہاری اور اس لڑکی کی نزدیکیاں ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہیں, یہ بات یاد رکھنا. آنے والے وقت میں ہم نے تمہیں اس علاقے کا سائنسدان بنانا ہے, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی غلطی ہو ہمارے آنے والی نسلوں پر داغ لگا دے. ہم تمہاری شادی کسی رات چلتی سے کر دیں گے, لیکن ادریس شاہ کی بیٹی سے نہیں. یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو. بابا کا لہجہ انتہائی سخت تھا. حکم بابا جان, میں خود ہی احتیاط کروں گا. وہ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے وہیں سے حویلی سے نکل گیا تھا, جبکہ بابا کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. اس خاندان کی کم وقت عورتوں کو اگر فضول گائی سے فرصت مل گئی ہو تو ہماری چادر لے آؤ, ہم نے باہر جانا ہے. وہ بولے کم دہاڑے زیادہ تھے. کچن میں کام کرتی فیروز بیگم کے ہاتھ بری طرح سے لرزے تو چائے کے کپ سے تھوڑی سی چائے ان کے ہاتھ پر گر گئی تھی. بیگم صاحب آپ ٹھیک تو ہے نا, ملازمہ نے پوچھا تھا, جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتی چائے کا کپ لیے فوراً ہی باہر نکل گئی تھی. انہیں پرواہ نہ تھی کہ ان کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے. اس وقت اگر انہیں کچھ نظر آ رہا تھا, کچھ سنائی دے رہا تھا, تو وہ صرف ان کے شوہر کا غصہ تھا جو جوتوں کی شکل میں ان پر نکل سکتا تھا, اور روز روز ملازمین کے سامنے شرمندہ ہونے کی وہ خود میں ہمت نہیں پاتی تھی. ان کے شوہر اس عمر میں بھی ان پر ہاتھ اٹھانے سے لحاظ نہ کرتے تھے. کبھی یہ بھی نہ سوچا تھا کہ ان کا 24 سال کا جوان بیٹا بھی وہاں موجود ہے, جو کہ جبران شاہ نے کبھی کسی معاملے میں اپنے پاپا کو غلط نہیں سمجھا تھا. اس کے مطابق بھی عورت کا کام صرف گھرداری ہے, اور اگر عورت یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر اس عورت کو عورت کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ تیزی سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھے اپنے جلا ہوا ہاتھ لیے کمرے کی طرف بھاگی تھی, تاکہ ان کی چادر لا کر انہیں دے سکے. جبکہ ان کی پھرتیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ غصے سے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا گئے تھے. آج ایک ہفتے کے بعد یونیورسٹی آیا تھا. ایگزام بے حد قریب تھے, اور ایسے میں یونیورسٹی سے چھٹی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. ابھی وہ یونیورسٹی میں پہنچا ہی تھا جب نظر سامنے کی طرف گئی, جہاں مہرالنساء اپنی سہیلی مریم کے ساتھ مصروف تھی. اسے آتے دیکھ کر فوراً ہی وہ اپنی راہ بدلتی وہاں سے نکلنا چاہتی تھی, لیکن جبران شاہ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا. اس کے راستے میں حائل ہوتے وہ اس کا آگے جانے کا راستہ بند کر چکا تھا, جبکہ مریم کو اس نے آنکھوں سے اشارے سے وہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا. مریم نے ایک نظر مہرالنساء کو دیکھا تھا, اور پھر خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے نکل گئی تھی. کیا بات ہے, حسین چہروں پر یہ نخرہ سوٹ کرتا ہے, لیکن بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا محترمہ. چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ جیسے سامنے والے کو اپنا بنانے کا ہنر رکھتا تھا. میرے راستے سے ہٹ جائیں جبران شاہ, کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے لیے مناسب ہے کیونکہ یہ نہ تو آپ کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی یہ میرے لیے. آپ ہم ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جو نہ تو آپ کے لیے بہتر ہوں گے اور نہ ہی میرے لیے. میں محبت کرتا ہوں تم سے مہرالنساء. وہ نہ جانے کیا کیا کہنے والی تھی, جب اچانک ہی جبران نے سختی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. اور کیا کروں میں ایسی محبت کا جبران جو چند لمحات کا ساتھ بھی نہ نبھا سکے. میں جانتی ہوں آپ اپنے بابا سے نہیں لڑ سکتے, اپنے خاندان سے نہیں لڑ سکتے تھے, کہ وہ مجھے جھوٹی محبت کی داستانیں سنا رہے ہیں. اپنے راستے الگ کریں, یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. وہ انتہائی سخت لہجے میں بولی تھی. مطلب تمہارے نزدیک میری محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ غصے سے دہاڑا تھا. نہیں ہے اہمیت آپ کے ان وقتی جذباتوں کی میری نظر میں. میں آپ کے ان جذباتوں کو سچ اس دن کہوں گی جس دن آپ بارات لے کر میری حویلی میں آئیں گے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں اور میں بھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے. نہ تو آپ کا خاندان کبھی ایسا ہونے دے گا, اور نہیں میرا خاندان مجھے دشمنوں کی نظر کرے گا. دشمن کب ہم نے کہا کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ سیاست کا کھیل تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت کے ہی پروان نہیں چلتی. مہرالنساء تم ایک دفعہ میری محبت میں مہر تو لگاؤ, میں دنیا سے لڑ جاؤں گا تمہارے لیے. وہ جذباتی ہو رہا تھا, جبکہ اس کے انداز پر مہرالنساء کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی. آپ کو میرے لیے دنیا سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے جبران شاہ, صرف اپنے والد صاحب سے ٹکرائیے جا کر. اپنے والد صاحب کو کہیں کہ میری حویلی میں میرا رشتہ عزت سے لے کر آئیں. اگر کسی طرح کی بدمزگی کے بنا وہ میرے گھر تشریف لے کر آئے تو یقین کریں میں بھی آپ کی محبت پر مہر لگا کر پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ میں آپ کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہوں. میں یک طرفہ رشتے نہیں نبھا سکتی جبران شاہ. پہلے مجھے آپ کی طرف سے ایک مکمل گارنٹی چاہیے. میں محبت کے نام پر ساری زندگی پچھتانا نہیں چاہتی. وہ غصے سے کہتی آنکھیں بھر گئی تھی, جبکہ مریم سیڑھیوں کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی. کیا ہوا, سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ مریم نے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے سے پوچھا تھا, جب نظر سامنے یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ماہر شاہ پر پڑی تھی. مریم کی تو جیسے سانسیں سینے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی. اس نے مضبوطی سے
पास ही मेहरुन्निसा का हाथ थामा था। रिलैक्स हो जाओ, इंसान है, जिन नहीं जो तुम्हें खा जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता तुम इससे इतना क्यों डरती हो, कज़न ही तो है तुम्हारा। मरियम की हालत देखकर मेहरुन्निसा को बहुत मजा आ रहा था, जबकि माहिशा को मरियम की तरफ आने के बजाय गुस्से से जबरान साहब की तरफ बढ़ते देखकर मेहरुन्निसा भी परेशान हो गई थी। जबकि यूनिवर्सिटी में थोड़ी देर में होने वाले हंगामे ने पूरी यूनिवर्सिटी को हिलाकर रख दिया था। माहिशा का कहना था कि जबरान शाह ने बीच रास्ते में इसकी मंगेतर मरियम का रास्ता रोका है। हालांकि हकीकत यह थी कि इसने रास्ता मेहरुन्निसा का रोका था। मरियम तो बस इसके साथ खड़ी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां अच्छा खासा हंगामा हो चुका था। यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा खासा खराब हो चुका था। लड़ाई काफी बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि दो ग्रुप आपस में भिड़कर एक दूसरे को जख्मी कर चुके थे। हॉकी और क्रिकेट बैट के साथ एक दूसरे के सर फाड़ते हुए इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये कोई तालीमी इदारा है। मरियम की तो हालत खराब होने लगी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके नाम पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो खौफ से कांप रही थी। इसका दिल जैसे सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आने को था। मेहरुन्निसा इसे बहुत मुश्किल से थाम रखा था। यूनिवर्सिटी में होने वाले झगड़े पर वो ज्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं कर सकती। झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था और हर तरफ खून खराबा देखते हुए मरियम थोड़ी ही देर में अपने होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी, जबकि इसके गले में मौजूद माहिशा के नाम का लॉकेट मेहरुन्निसा के गले की चेन के साथ अटक कर टूट गया था। अब्रक अब्रक उठ जाए ना, देखें क्या वक्त हो गया है, 10 बजने वाले हैं। उफ अल्लाह, आप जागते क्यों नहीं? इतनी खराब नींद है ना आपकी जो खत्म ही नहीं होती। उठ जाए ना मेरे प्यारे से हैंडसम से हस्बैंड। आपको पता है, जब मैंने आपको पहली दफा देखा था ना ये बड़ी बड़ी दाढ़ी में, मुझे सच में नहीं लगा था कि ये दाढ़ी को तरतीब देकर आप इतने प्यारे लगेंगे। वैसे आप क्लीन शेव में कैसे लगेंगे, ये मैं सोचती हूँ। वो इसके पास बैठी इसका सर बड़ी मोहब्बत से अपनी गोद में रखते हुए इसके नकुश के साथ छेड़खानी करने में मसरूफ थी। अब इसके पास यही एक तरीका था इसे जगाने का। नहीं, मैं क्लीन शेव नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये दाढ़ी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, मैं जानता हूँ मैं मुकम्मल सुन्नत पर नहीं चलता, लेकिन एहतराम में दाढ़ी रख सकता हूँ। मुझे हल्की हल्की दाढ़ी पसंद है। दाढ़ी का मजाक बनाना गुनाह है। मुझे नहीं पसंद क्लीन शेव। मेरे बाबा की हल्की हल्की दाढ़ी हुआ करती थी, मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी। वो इसकी उंगलियां थामे अपने लब्बों से लगाते सीने पर रखकर आंखें यूं ही मोंदे हुए था, यानी कि अभी इसके जागने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने माँ बाप का जिक्र इतनी मोहब्बत से करता था कि दिल को इनको ना देखने के बावजूद भी इनसे मोहब्बत सी महसूस होती थी। मैंने देखी हैं आपके बाबा की तस्वीरें दूसरे रूम में, और भी वो एल्बम भी। हाँ, मुझे याद आया, आपके एल्बम में मेहरुन्निसा की तस्वीर है। वो अचानक दिमाग में आने वाले सवाल पर बोली थी। किसकी तस्वीर है? वो आंखें खोले फिर से सवाल करने लगा, जिसे सुना ही ना हो। मेहरुन्निसा की, अब्रक मेरे बाबा की फर्स्ट वाइफ की। इसने फिर से दोहराया था, जबकि अब्रक अब भी अनजान नजरों से इसे देख रहा था। वो इसके रिएक्शन से अंदाजा लगा चुकी थी वो किसी मेहरुन्निसा को सिरे से जानता ही नहीं है। देखे, मैंने वो एल्बम काफी अरसे से देखा देखे मैंने वो वाला एल्बम काफी अरसे से देखा नहीं। हो सकता है मामा की कोई दोस्त हो, या फिर बाबा की यूनिवर्सिटी की कोलीग्स हो सकती है, क्योंकि इस एल्बम में बहुत ज्यादा लोगों की तस्वीरें हैं। मैं किसी को भी नहीं जानता। वो जो सारी तस्वीरें हैं ना, वो कराची की हैं। मेरे बाबा कराची के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो परसुकून अंदाज में बोला था, जबकि उसके बालों में उंगलियां फेरती हल्की सी मुस्कुराई थी। दफा करे, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो। वैसे भी मैंने मेहरुन्निसा की तस्वीर बहुत कम देखी है। मैं नहीं जानती वो मेहरुन्निसा ही है या कोई और। वैसे भी मुझे नहीं जानना कि इसके बारे में कुछ भी। इस औरत से मेरा तलक बस इतना है कि वो मेरे भाई की माँ है, और बस। इसके लहजे में अजीब सी नफरत उतर आई थी, जिसे महसूस करते हुए अब दोनों आंखें खोले से देखने लगा था। इसकी चिड़िया किसी से नफरत भी कर सकती थी, ऐसा कैसे मुमकिन था? ठीक है, मेहरुन्निसा तुम्हारी स्टेप मामा थी, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया था? वो परेशानी से इसका चेहरा देखते हुए सवाल करने लगा, तो इसने फौरन नफी में सर हिलाया था। कुछ लोगों के साथ तकदीरें बुरा करती हैं अब्रक, में और मेरी माँ तकदीर के हारे हुए हैं। और मेहरुन्निसा इसके लबों पर अचानक एक राहत मुस्कुराहट बिखरी थी। अब्रक इसे देखकर रह गया। ये नफरत भरी मुस्कुराहट मेहरुन्निसा नामी औरत के लिए थी। इसकी चिड़िया सच में किसी से नफरत करती थी और बेतहाशा करती थी। कौन थी मेहरुन्निसा? इसने अचानक सवाल किया। वो इसे देखने लगी। इसकी आंखों में जैसे पथरीली सख्ती थी। वो गुस्से से सर ठडक गई, फिर बोली तो जैसे अब्रक के पास कुछ रहा ही नहीं था कहने को। मेहरुन्निसा एक गंदी औरत थी, एक गंदी औरत, इंतहाई गंदी, और इसका वजूद गंदा था। लोग मेरी माँ को गंदा कहते हैं, वो गंदी औरत थी। हाँ, मेरे भाइयों को जन्म देने वाली औरत गंदी थी। अपने शोहर के होते हुए इसने बाहर चक्कर चला के रखे हुए थे। मेरे बाबा के साथ निकाह में रहते हुए इस औरत ने बाहर के मर्दों के साथ यारी लगा कर रखी थी। इसके अल्फाज इंतहाई गंदे थे, लेकिन मासूमियत में डूबे हुए। अब्रक हैरत से इसे देखता रह गया था। यकीनन वो वही अल्फाज दोहरा रही थी जो इसने सुन रखे थे। वो सीधा होकर बैठ गया था। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो ऐसा कोई सवाल नहीं करना चाहता था जो इसकी चिड़िया की आंखों में आंसू लेकर आए, लेकिन वो इसके बारे में सब कुछ जानना भी चाहता था। मेरी अम्मी मर गई, और आपको पता है मेरे बाबा ने कभी मेरी अम्मी से मोहब्बत नहीं की, क्योंकि वो मेहरुन्निसा से इश्क करते थे। अगर मेहरुन्निसा ना होती तो मेरी अम्मी मेरे बाबा की मोहब्बत होती। ये तुम्हारे बाबा की गलती है। अगर उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया था तो इन्हें अगर उन्होंने दूसरा निकाह कर ही लिया था तो इन्हें दोनों बीवियों को बराबर के हकूक देने चाहिए थे। बीवी से मोहब्बत करना भी सुन्नत है। निकाह में आई हुई औरत से मोहब्बत की जाती है, बेशक इश्क ना हो, लेकिन मोहब्बत का हक हर औरत को हासिल है। मैं मानता हूँ मर्द इश्क एक ही दफा करता है, लेकिन वो अपने निकाह में आई दूसरी औरत को भी बराबर की मोहब्बत दे सकता है।
तुम्हारे पापा एक नाइंसाफ इंसान थे, उन्होंने तुम्हारी अम्मी के साथ ज्यादती की है। बस सच मुझ में अफसोस से बोला था, अगर इस शख्स ने अपने निकाह में 2 औरतें ले ही ली थी तो एक औरत के साथ नाइंसाफी क्यों? सामने बैठी इस लड़की की आंखों में दर्द था और वो दर्द चीख चीख कर कह रहा था कि इसकी माँ को कभी इसके शोहर की मोहब्बत नहीं मिली थी। अब तक आप कैसी बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब। दूसरी औरत को जिंदगी में लाना ही क्यों था, निकाह करना ही क्यों था? अगर आप एक ही मोहब्बत करते हैं तो आपके अब इसके अंदर की औरत सर उठाने लगी थी। इसका शौहर दूसरे निकाह पे इतनी तवज्जो क्यों दे रहा था? इसके होते हुए इसे ये मंजूर नहीं था। ना तो इसने माँ की मोहब्बत देखी थी और ना ही बाप की, और इसका शौहर इसे दूसरे निकाह के लेक्चर दे रहा था जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। अल्लाह अल्लाह, इतना गुस्सा मेरी चिड़िया ज़्यादा चू चू मत करो। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा निकाह थोड़ी ना कर रहा हूँ। वो अभी कह रहा था जब इसके सीने पर जोर से इसका हाथ बजा था और फिर अगले ही लम्हे वो इसके सीने के बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए इसके ऊपर झुकी थी। इस वक्त अब्र को कमीज ना पहनने का इंतहाई अफसोस हो रहा था, क्योंकि सीने पर होती चुभ ने इसे सचमुच में चीखने पर मजबूर कर दिया था। अल्लाह जालिम औरत, गलती होगी मेरी माँ, मैं नहीं सोच रहा ऐसा कुछ भी, माफ़ कर दो खुदा के लिए। वो इसके हाथ पर अपना हाथ रखता इसकी मुट्ठी खोलने लगा था, क्योंकि इस वक्त जिस तरह वो इसे गुस्से से घूर रही थी, अब तो अब्र के फरिश्तों की भी तौबा थी कि वो दूसरी शादी को डिफाइन करता। एक बात कान खोल कर सुन लो, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए अब्रिक्षा, मेरे बाप की जिंदगी पर मेरा कोई जोर नहीं था। वो एक निकाह करता या 10 करता, मुझे इस पर इतराज उठाने का कोई हक हासिल नहीं था। लेकिन आपने अगर दूसरी औरत को हमारी जिंदगी में लाने के बारे में सोचा भी ना, तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी आपके, याद रखिएगा। जबरान गर्देसी की बेटी हूँ मैं, और जबरान गर्देसी कितना जालिम था ये आपको हमारे इलाके का बच्चा बच्चा भी बता सकता है। वो गुस्से से कहती इसके करीब से उठने लगी थी, जब अचानक ही वो इसका हाथ थाम कर इसे खींचकर इसे खींचकर खुद पर गिरा चुका था। इसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब करता, एक झटके में ही पैर पर घूमता इसे अपने नीचे कर गया था। वाह, मेरी चुड़िया को तो गुस्सा भी आता है, कसम से तुम्हारा ये गुस्सा दिल चाहता है तुम्हारे मुंह चूम लूं। वह इसके होठों पर झुकते हुए पूरी शिद्दत से इसके लब्बों की नरमी को चुराने लगा था, जबकि वो जो गुस्से में यहाँ से वॉकआउट करने का इरादा रखती थी, इसकी शिद्दतें सहते हुए इसके गिर्द अपना हिसार बना गई थी। अब्रक मैं सच्ची में बर्दाश्त नहीं करूंगी, आप सिर्फ मेरे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपने ऐसी गंदी सोच भी अपने दिमाग में लाई ना, तो मैं आपको दूल्हा बनने से पहले अल्लाह के पास पहुंचा दूंगी, और आप सिर्फ मेरे हैं। वो अपनी गर्दन पर इसकी दाढ़ी महसूस करती इसकी बाहों में सिमटी थी, लेकिन साथ साथ धमकियां भी जारी थी। इसकी मासूमियत भरी धमकियों पर वह मुस्कुराते हुए सिर्फ शिद्दत दिखाने लगा था। फिर अचानक ही अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकालते हुए इसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में थाम किया था। आज छुट्टी कर लूँ? वो बड़े प्यार से इसका चेहरा थामे इजाजत मांगने लगा, तो दिलम को एहसास हो गया था कि इसे अपने साथ फ्री करके गलती कर ली थी। नहीं, आप नहीं कर सकते छुट्टी, चले जाइए इधर से। आप काम पर जाएंगे, कल तो मैंने खाना बना दिया था ना, आज मैं नहीं बनाऊंगी, आज जो आप लेकर आएंगे वही बनाऊंगी। वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे दूर करने लगी, तो वो इसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए अपने हाथ में जकड़ गया था। छुट्टी कर लो, जज्बात जाग रहे हैं। अगर ऐसी हालत में काम पर जाऊंगा तो काम पर फोकस नहीं रहेगा। ऐसी वैसी कौन सी हालत, बिल्कुल ठीक है आप, और फौरन से काम पर जाए। हाँ बता, जो कोई भी बहाना बनाया, हम मिडिल क्लास लोग हैं जनाब, हम इतने बहानेबाजियां नहीं कर सकते। यार एक तो तुम्हारी ये मिडिल क्लास की रट खत्म नहीं होती। मेरी अभी नई नई शादी हुई है ना, थोड़ी सी छुट्टियां तो बनती हैं। फिलहाल तो मेरा तुम्हें अपने सामने से उठने देने का भी दिल नहीं करता। दिल चाहता है कि हर वक्त तुम्हें अपने पास बिठाकर देखता रहूं। अच्छा, तो जनाब सिर्फ मुझे देखने के लिए छुट्टी करना चाहते हैं। बस के अल्फाज पकड़ते हुए खिलाई तो उसकी गर्दन में मुंह दिए वो भी खिलकर हंसा था। तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, इतनी हसीन बीवी पहलू में जिसके नकूश वैसे ही बंदा हिफ्स कर चुका हो, तो सिर्फ देखने में क्या रखा है? हम तो पूर पूर को महसूस करेंगे। बस के लब्बों को पूरी शिद्दत से चूमते हुए फिर से इजाजत तलब नसूसे से देखने लगा था। अजीब दीवाना था, कभी हक जताता तो कभी यूं जताता जैसे वो सिर्फ इसकी हो, और कभी इजाजत मांगता तो यूं मांगता जैसे इसकी इजाजत के बिना सांस भी नहीं लेगा। मंजूर है, गोलगप्पे खिलाने के लिए लेकर चलेंगे। वो शरारत से इसके गर्दन में अपना नाजुक बाहों का हार बना गई थी। अब रख सदके अपनी जान के, गोलगप्पों का ठेला बाहर लगवा दूंगा। वो मजे से कहते हुए इसके कंधे से फौरन शर्ट सरका गया था, जबकि इसके खतरनाक इरादे जानकर वो बुरी तरह से इसकी बाहों में मचली थी। वो छुट्टी क्यों मांग रहा था ये तो वो पहले ही जानती थी, लेकिन अब जरूर से ज्यादा ही जल्दबाज भी था। अल्लाह, आपने सिर्फ मुझे देखने के लिए छुट्टी करनी थी ना। वो दूसरे कंधे से भी कमीज सिरकती महसूस करके फौरन बोली थी, जबकि वो इसके कंधों पर झुकते हुए अपने लबों की न रुकने वाली मेहरू का सिलसिला शुरू कर चुका था। अब इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। वो अपने दांतों का लम्स इसकी नाजुक सराहीदार गर्दन पर बिखेर देता, इसकी शेरा को अपनी उंगलियों में आहिस्ता से दबाता शिद्दत से चूम गया था। इसकी हरकत इसे बुरी तरह से मचलने पर मजबूर कर गई थी, जबकि अब्र की बेबाक जसारतों का सिलसिला बनने लगा था। इसकी बेबाक हाथों का लम्स इसके पोर पोर पर अपना हक जताने लगा था। वो जो इसे छूता था तो पूरे हक से छूता था, जैसे वो इसी का वजूद हो। वो सर पैर इसी की थी, इस बात का यकीन था इसे, और इसी बात का यकीन इसे भी था जो खुद पर इसके लम्स को बिखरता महसूस करके इसकी बाहों में पिघलती जा रही थी। वो अपनी जसारतों में इजाफा कर गया था, जबकि इसकी शिद्दतें भी
इसी शिद्दतों में भी इसी रफ्तार से इजाफा हो रहा था। अबरक इसकी ना बर्दाश्त होने वाली शिद्दतों पर बतरफ कर इसे रोकने लगी थी, लेकिन वह एक झटके में से अपने बेहद करीब कर गया था। बर्दाश्त करो, अल्फाज थे या लफ्जों में पिघली हुई शिद्दत, जिसका जानलेवा अंदाज दीवानगी की हदों को छू रहा था। वह जैसे इसके नाजुक सिरापे में उतर कर कहीं गुम हो जाना चाहता था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह उसे खुद में कहीं जज़ब कर ले। इसकी ना रुकने वाली शिद्दतें कमरे में अजीब मिलन की खूबसूरत सरगम पैदा कर रही थी। इसका वजूद इसके नीचे दफ्तर थकने लगा था, लेकिन अब रख पर तो जैसे जुनून सवार था। वो इसकी दीवानी के सामने हारती जा रही थी। जब वो दीवाना बना इस पर टूट कर बरस रहा था, इसकी शिद्दतों के सामने हारती हुई वो खुद को इसमें छुपाने लगी थी, जबकि अपने पोर पर इसके हाथों की बेवाकियां महसूस करती इसके दिल की धड़कनें थमने लगी थी। लेकिन इस शख्स को आज इस पर रहम नहीं आ रहा था। वो इसकी दीवानगी में पिघलती जा रही थी।